So one is sole proprietorship, ठीक है. Second is partnership. You can do business as a sole proprietorship, or another way is partnership. Third can be you can do business as a limited liability partnership, LLP, a modified version of partnership, or other way of doing business. I'm talking about the business, company. आप बोलोगे सर ट्रस्ट वगैरह, ट्रस्ट दे डोंट डू बिजनेस, दे आर NPOs, not for profit organizations, companies, company form of business. They are there to earn the profit. Sole proprietorship, partnership, LLP and company, these are the business organizations, right? Try to understand. We learn the right financial statements of sole proprietorship in 11th. ये हम 11th में learn किए, 11th standard, बराबर. Partnership we will be learning in 12th. So we will learn in and out, right, of the partnership. Everything related to partnership is our syllabus. Try to understand. What do you mean by partnership? What do you mean by partnership deed? What are the types of the partners? What are the types of the partnership, right? Then what are the financial statements of the partnership? Then like how the capital accounts are maintained, admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner, and closing down the partnership, that is dissolution of the partnership. So basically अगर अपना syllabus देखोगे, मैं बोलता हूँ 70% syllabus partnership पे, 70% syllabus is on partnership. So partnership is very important for us. So we must understand the provisions of the Partnership Act 1932. Try to understand. There is no specific act to govern the sole proprietorship. No specific act. Right? In case of partnership, yes, we have Indian Partnership Act. Indian Partnership Act. Act 1932. So we have to understand the provisions in Indian Partnership Act 1932 related to accounting. हमें accounting related चाहिए. That is given in the section 13. Section 13 of the act. So we will be dealing with the section 13 in detail. यही तो हमारा काम है. Indian Partnership Act. Then LLP, right? ये अपने सिलेबस में नहीं है. This is at advanced level, like आप CA में जाओगे तो आपको मिलेगा, right? Company, yes, it is also in 12th. And companies are governed by Companies Act 2013. Companies Act 2013. There are some of the students who have been watching my lectures related to Indian Partnership Act. I have received some of like feedbacks from the right your batch. Actually, those lectures are meant to be CA Foundation students, but I have shared with you. वो link मैंने share की थी, and there are students who are watching it. I really feel appreciated, right? I appreciate all their efforts because it's always good to gain more and more knowledge. It's more about learning than the gain, like getting the marks. आपको marks तो वैसे भी मिल जाएंगे, don't worry. आपको board marks दे देगा. But what is more important is learning, developing the skills, and that is for you are here. Try to understand. We at Ekathon can believe in like generating the skills, developing the skills of the students. And I have that belief. Try to understand. खाली आके सिखाना मेरा काम नहीं है. So by the end, मैं आपको एक guarantee देता हूँ. By the end, you will say yes, कुछ तो अलग सीखा. So ये अलग अलग ways है business करने के. LLP is a mixture of partnership and company. LLP is a mixture of partnership and LLP. Good points of partnership, good points of companies are combined and LLP is formed. Try to understand. LLPs are governed by, right? They are governed by Limited Liability Partnership Act 2008.
They are governed by Limited Liability Partnership Act 2008. We are not here to discuss the acts, try to understand. We are here to understand, right, the modes of doing business. You can do the business as a sole proprietorship. You can do business, right, with other owners, that is in the partnership, right? Or you can form a company. You can register your business as a company under Companies Act, and you can like carry on a business. एंड हमारे 12th के सिलेबस में क्या है? हमारे 12th के सिलेबस में पार्टनरशिप रिलेटेड एवरीथिंग, जो जो पार्टनरशिप में सब है, एंड कंपनीज रिलेटेड, राइट, सम इंट्रोडक्टरी पार्ट है. इंट्रोडक्टरी पार्ट मतलब कंपनी के कैपिटल के रिलेटेड है, हाउ कंपनी रेजेस कैपिटल, राइट, इश्यू ऑफ शेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन आपने सुना होगा आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर वगैरह, जिनको पता है, नहीं तो भी चल जाएगा, राइट, बट कंपनी के रिलेटेड है, हाउ दे रेज द कैपिटल, उसकी अकाउंटिंग हमारे सिलेबस में है. सो ये अपना राइट, ये बिजनेसेस के टाइप्स है. एंड राइट, हम उसमें से 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप सीख चुके हैं, जिसमें हम फाइनल अकाउंट्स में सीखते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये हम करते थे. पार्टनरशिप में we will be learning the same along with some more things. So हमारे सिलेबस में पार्टनरशिप रिलेटेड क्या क्या है मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ. 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनल अकाउंट, जिनको आप फाइनल अकाउंट्स बोलते हो ना, वो गाउठी है. इट इज एक्चुअली टेक्निकली दे आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स. पार्टनरशिप फर्म के फाइनेंशियल्स में क्या क्या आता है? इन दैट वी विल बी लर्निंग ए, ट्रेडिंग अकाउंट. सेकंड, बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. Profit and loss appropriation account. And the last, balance sheet. This is one chapter related to financial statements of the partnership firm. Next, we will be learning reconstitution of the firm. Reconstitution of partnership firms. रिकंस्टिट्यूट करना. पार्टनरशिप है और हम उसको रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं, उसको रिफॉर्म कर रहे हैं. रिफॉर्म करना, ठीक है, मतलब चेंज करना. पार्टनरशिप के रिलेशन को चेंज करने को हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. मतलब उसमें एक हमें सीखना है एडमिशन ऑफ द पार्टनर. एडमिशन ऑफ पार्टनर, पार्टनर को एडमिट करना, हॉस्पिटल में नहीं, पार्टनर को पार्टनरशिप में लेना. मतलब सपोज ए, बी एंड सी आर द पार्टनर्स, 3 लोग साथ में आके बिजनेस करते हैं, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं, बहुत सिंपल वर्ड्स में, बट वो डेफिनेशन रॉन्ग है, ठीक है. ए बी सी आर डूइंग बिजनेस टुगेदर, मैं बोल रहा हूँ वो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं. नाउ दे वांट टू ऐड डी इनटू पार्टनरशिप. एक नए बंदे को वो पार्टनर लेना चाहते हैं. दिस प्रोसेस बाय विच यू एडमिट ए न्यू पर्सन इनटू योर पार्टनरशिप एज योर पार्टनर, उसको बोला जाता है एडमिशन ऑफ द पार्टनर. इससे रिलेशनशिप चेंज होगी. पहले कितने पार्टनर्स होते थे? 3 पार्टनर्स होते थे. आगे से कितने पार्टनर्स होंगे? 4 पार्टनर्स होंगे. समझ में आ रहा है? सपोज पहले वो 1:1:1 में प्रॉफिट शेयर करते थे. जो भी प्रॉफिट आता तीनों में बंटता था, आगे से 4 में बटेगा. रिलेशनशिप चेंज होगी. रिलेशनशिप चेंज होती है, उसको बोला जाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. क्या बोला जाता है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. अगर पार्टनर्स के बीच के रिलेशन चेंज हो जाती है, उसको टेक्निकली बोला जाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. वो हमें सीखना है. उसमें एक है, वन वे ऑफ डूइंग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म इज एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. बी, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर. रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर. इसमें क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने बोला ए बी सी पार्टनर थे,
उन्होंने बाद में डी को ले लिया पार्टनरशिप में। क्या बोला मैंने? देयर वर 3 पार्टनर्स ए बी सी, उन्होंने डी को लिया, इसको बोलेंगे एडमिशन हो गया, डी का एडमिशन हो गया पार्टनरशिप में, डी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर इनटू पार्टनरशिप। एंड बाद में सी बोलता है कि आई वांट टू रिटायर, रिटायरमेंट इज वॉलंटरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो बोलता है आई डोंट वांट टू बी नाउ पार्टनर, आई वांट टू रिटायर। मतलब आगे से अब कौन पार्टनर रहेंगे? ए बी एंड डी। सी रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अगर सी जाता है पार्टनरशिप से तो उसकी अकाउंटिंग, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। पहले कितने पार्टनर्स थे? ए बी सी डी थे। अब कितने रहेंगे? ए बी एंड डी रहेंगे। डी सी चला जाएगा, रिटायरमेंट हो गई। सी, डेथ ऑफ ए पार्टनर, सपोज सी की डेथ हो जाती है, सी की डेथ हो गई, मतलब ये रिटायरमेंट परमानेंट है भाई, वो चाह के भी रिटर्न नहीं आ सकता डेथ होने के बाद। सो ए बी सी डी पार्टनर्स थे, सी की डेथ हो गई तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा। नाउ देयर विल बी ओनली 3 पार्टनर्स henceforth. So death of a partner leads to change in the relation between the partners, reconstitution of the partnership firm. Actually अकाउंटिंग के लिए रिटायरमेंट एंड डेथ इज सेम। अकाउंटिंग के लिए, बिकॉज अकाउंटेंट को क्या फर्क पड़ता है? तो जा रहा है, तू रिटायर होके जा या हमेशा के लिए जा, हमारे लिए अकाउंटिंग सेम रहेगी। सो रिटायरमेंट एंड डेथ की अकाउंटिंग सेम है। एंड थर्ड, राइट, देखो पहले हम सीखेंगे फर्स्ट एक हमारा चैप्टर है जिसमें हम सीखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप, हाउ द कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन इन द पार्टनरशिप। कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन, बिकॉज देयर आर मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन ओनर, तो कैसे कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन किया जाएगा। व्हाट गवर्न्स द पार्टनरशिप, लाइक पार्टनरशिप डीड क्या होती है, समझ में आ रहा है? वी विल लर्न सेक्शन 13 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, समझ में आ रहा है? एंड वी विल लर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, दैट इज वन चैप्टर। इन अनदर चैप्टर्स और चैप्टर्स बेसिकली वी विल लर्न चेंज इन द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स। अगर कोई नया पार्टनर आता है तो क्या अकाउंटिंग रहेगी, अगर कोई चला जाता है तो उसकी क्या अकाउंटिंग रहेगी। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, वो किस हेड में मिलेगा आपको? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म्स में मिलेगा। उसमें 3 मिलेंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। एंड एक है अगर पार्टनरशिप बंद होती है तो उसकी अकाउंटिंग क्या रहेगी। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, आप जब चाहिए तब बंद कर सकते हो बाय योर कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल द पार्टनर्स। या पार्टनरशिप इंसॉल्वेंट हो गई, अगर पार्टनरशिप खुद इंसॉल्वेंट हो, इंसॉल्वेंट कब होगी पार्टनरशिप? व्हेन पार्टनरशिप असेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ पार्टनरशिप लायबिलिटीज। पार्टनरशिप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके भी लायबिलिटीज है, उसके भी असेट्स हैं, एंड व्हेन दोज एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ द पार्टनरशिप लायबिलिटीज, वी से द पार्टनरशिप इज इंसॉल्वेंट। पार्टनरशिप इंसॉल्वेंट अलग एंड पार्टनर इंसॉल्वेंट अलग। सो अकाउंटिंग में पार्टनरशिप इंसॉल्वेंसी अलग एंड पार्टनर इंसॉल्वेंसी अलग। Try to understand. I am talking about the partnership. हम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट फॉलो करते हैं, ओनर पार्टनर अलग होता है एंड बिजनेस अलग होता है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सेज बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट एंटिटीज, समझ में आ रहा है? सो पार्टनरशिप अगर बंद हो जाती है तो तब क्या होगा, तब कैसे उसकी अकाउंटिंग करनी है, हाउ वी विल क्लोज द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप बंद होने को टेक्निकली बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। क्या बोला जाता है? डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। सो एक और चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सो इन दिस केस ये चैप्टर में हम सीखेंगे कि पार्टनरशिप उसके सब एसेट सेल करेगी, उससे जो पैसा आएगा वो पैसा सब उनके क्रेडिटर्स वगैरह में बांट देगी, बचेगा तो पार्टनर्स को उनका कैपिटल मिल जाएगा, ये सब सीखेंगे। बंद हो जाएगा बिजनेस, बिजनेस क्या करना है? बंद करना है, उसको बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप बंद होती है उसको डिसोल्यूशन बोला जाता है।
कंपनी बंद होती है उसको लिक्विडेशन बोला जाता है। कंपनीज को डिसॉल्व नहीं करते, फर्म्स को डिसॉल्व करते हैं एंड कंपनीज को लिक्विडेट करते हैं। ठीक है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड these chapters under पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप फॉर्म करने से पार्टनरशिप चेंज करना एंड पार्टनरशिप को बंद करना, ये सब अपने सिलेबस में। क्या क्या बोला? पार्टनरशिप स्टार्ट करने से, राइट, पार्टनरशिप में चेंजेस एंड पार्टनरशिप का एंड, स्टार्ट टू एंड सब है अपने सिलेबस में। ठीक है, नेक्स्ट, इन कंपनीज, राइट, कंपनीज के केस में एक्चुअली बहुत वास्ट सिलेबस है, बट अपने सिलेबस में इशू ऑफ शेयर्स, कंपनीज इशू शेयर्स, आपने नाम तो सुना होगा कि राइट शेयर मार्केट में वी कैन परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी वगैरह। शेयर्स, राइट, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ऑब्वियसली हम डीप में समझेंगे, मैं खाली कंटेंट समझा रहा हूं आपके सिलेबस का। इशू ऑफ शेयर, सेकंड, राइट, फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स, एग्जाम्पल क्लास में अगर कोई मोबाइल यूज करता है, आई फॉरफिट द मोबाइल, फॉरफिट कैंसल, मैं मेरे पास ले लेता हूं। जब कंपनी किसी शेयर होल्डर्स के शेयर्स कैंसिल करती है तो उसकी अकाउंटिंग, फॉरफीचर मतलब कैंसलेशन ऑफ द शेयर्स। एग्जाम्पल, आई एम ए शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का सपोज शेयर होल्डर हूं, एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सपोज, राइट, फॉरफिट्स माय शेयर्स, कैंसल्स माय शेयर, कब किए जाएंगे वो देखना है। अगर फॉरफिट होता है तो व्हाट विल द अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंपनी, हम कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग समझने वाले। इश्यू ऑफ शेयर्स, कैंसलेशन ऑफ शेयर जिसको बोला जाता है टेक्निकली फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स, एंड कंपनी वो मेरे शेयर्स कैंसिल करके किसी और को रीइश्यू करेगी, उसकी अकाउंटिंग रीइश्यू ऑफ शेयर्स। रीइश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। आगे ये अपने सिलेबस में रिलेटेड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो इन 12th वी विल बी डीलिंग विद द पार्टनरशिप इन डिटेल एंड इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कंपनी। इंट्रोडक्टरी नहीं है, वैसे भी कंपनी बहुत कुछ है अपने सिलेबस में, बट स्टिल आई विल से, राइट, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कैपिटल एस्पेक्ट ऑफ द कंपनीज, ठीक है, नॉट मोर देन दैट। सो नाउ इसके सिवा अपने सिलेबस में क्या है, इसके सिवा अब मैं आपको इंडेक्स पे लेके चलता हूं, ठीक है। यहाँ पे भी एक इंडेक्स दी उन्होंने एंड आगे भी एक इंडेक्स दी है, ध्यान देना। मैंने जो बोला इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्टनरशिप, दिस इज चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। लास्ट ईयर मतलब ओल्ड सिलेबस में इसके दो अलग चैप्टर थे, मतलब इसको ही दो में स्प्लिट किया था, नाउ दे हैव कंबाइंड। देखो, हाँ उन्होंने कंबाइन किया, परफेक्ट, उन्होंने कंबाइन किया है। देन दूसरा है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल, दगड़ू शेठ हलवाई, राइट, चैरिटेबल ट्रस्ट, वाडिया कॉलेज, सेंट मीराज कॉलेज, बीएमसीसी कॉलेज। दूसरा एग्जांपल, राइट, your clubs, example, right, they are not for profit organizations, their existence, or they have registered, they have incorporated not to make the profit but to serve the society, to serve its member, npo, cooperative society आपने सुना होगा, राइट। सो उनका फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है वो समझना है। मे दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर, most difficult, and this is most, right, इंपॉर्टेंट चैप्टर एज वेल। ये ऑलमोस्ट मैं बोलता हूं आपकी कम से कम 15 मार्क, 12 लास्ट, मतलब दे हैव नॉट गिवन यू वेटेज, बट मैं लास्ट टाइम का वेटेज समझाता हूं, सिमिलर वेटेज हो सकता है, आई डोंट नो, मैं लास्ट टाइम का वेटेज समझाता हूं, राइट, February 20 का एग्जाम का,
अभी चेंज हुआ है, बट आप समझ सकते हो हर चैप्टर का वेटेज क्या था. February 20 का समझा रहा हूं. Introduction to the partnership and partnership final accounts was for 15 marks. Minimum 15 marks, huh? Was for 15 marks. Then अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट, मैंने बोला जो एनपीओज होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. कौन से होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? एग्जांपल देता हूं मैं. आपका वाडिया कॉलेज इट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. दीनानाथ मंगेशकर चैरिटेबल हॉस्पिटल. इवन योर बीसीसीआई इज ए एनपीओ. बीसीसीआई आप बोलोगे सर बीसीसीआई कितना प्रॉफिट कमाती है, बट इट्स पर्पस इज टू सर्व, to regulate the cricket in India. Its purpose is not to make profit out of that. Eventually they earn profit, yes, but that is not their motive. Try to understand. ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, is not a profit making organization. That institute regulates CA, Chartered Accountancy course in India. They regulate chartered accountants in India. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, टेम्पल्स, क्लब्स. मैं बार्स नहीं बात कर रहा हूं, मैं क्लब्स की बात कर रहा हूं. लाइक रोटरी क्लब, दे आर दियर, राइट. वो कैसे चलते हैं? उनके मेंबर्स मेंबरशिप फीस देते हैं. ये सुना होगा आपने. मेंबर्स मेंबरशिप फीस देते हैं एंड उस फीस से वो बिजनेस चलते हैं. ग्राहक पेट पुणे में बेस्ट एग्जांपल है. एसपी कॉलेज के सामने ग्राहक पेट. ऑलमोस्ट जो पुणे का है उसको पता ही होगा ग्राहक पेट. People come together, right? People come together and, right, they carry on business, right? What is the intention? To serve each other, to help each other, cooperate each other. उसको बोला जाता है not for profit organization. Yes please, you can unmute yourself. Prem, you have raised your hand, you can unmute yourself. Yes. वही मैं बोल रहा हूं कि कभी कभी आप, राइट, गलती से इधर उधर क्लिक कर सकते हो. ठीक है. लोअर योर हैंड. ओके. सो इन लास्ट पेपर इट वाज फॉर 15 मार्क्स. तो अभी भी 15 मार्क्स का मिनिमम रहेगा, रहेगा ही रहेगा. ठीक है. अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स फॉर 12 मार्क्स, मिनिमम 12 मार्क्स. प्रैक्टिकल क्वेश्चन 12 मार्क्स का होता था. हमें फाइनल अकाउंट्स करने थे. उनके फाइनल अकाउंट्स में क्या आता है हमें समझना है. उसके बाद सो दिस इज ए डिफरेंट. मैंने बोला इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट, बट मैं ये बोलता हूं ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है. सबसे फेवरेट टॉपिक है because it actually helped me to inculcate accounting sense in the right mind of the student. ये चैप्टर मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है पूरे सिलेबस में. देन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, नए पार्टनर को बिजनेस में लेना, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में रिटायर और ही उसके डेथ होने पे ही गोज आउट. लास्ट ईयर ये 8 मार्क का हुआ करता था. इसमें से ये और था एक दूसरे को, लाइक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये एक दूसरे को और होते थे. यू हैव टू सॉल्व एनी वन प्रॉब्लम. जनरली एडमिशन को ऑप्शन रिटायरमेंट होता था या एडमिशन का ऑप्शन डेथ होता था. बिकॉज मैंने पहले ही जिक्र किया था रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में अकाउंटिंग इज सेम, मैंने बोला था. सो बोर्ड रिटायरमेंट एंड डेथ एक दूसरे को ऑप्शन नहीं देते थे. वो एडमिशन को रिटायरमेंट ऑप्शन देते थे या एडमिशन को डेथ ऑप्शन होता था. तो इन फॉर ए नॉर्मल स्टूडेंट, राइट, उसके लिए एडमिशन कंपल्सरी क्वेश्चन जैसे वो दिखता था हमेशा. इस ईयर क्या होगा आई डोंट नो, राइट, बट लास्ट ईयर का मैं बोल रहा हूं तो आपको समझ में आएगा कि हर चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या हुआ करता था और आगे क्या होगा. राइट, विद इन ड्यू कोर्स वी विल अंडरस्टैंड जब बोर्ड्स वाले नोटिफाई करेंगे. अभी तो सब कोरोना की वजह से सब लॉकडाउन है. डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, इट वाज फॉर 8 मार्क्स. डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म वाज फॉर 8 मार्क्स. ठीक है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज टू फॉर 8 मार्क्स. ये 8 to 10 मार्क्स के लिए रहते थे. ठीक है. देन आगे कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, राइट, दिस वाज फॉर 8 मार्क्स के लिए होता था. ठीक है. 8 to 10 मार्क्स. ऑब्जेक्टिव्स पकड़ के 10 मार्क्स. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
देखो वर्डिंग क्या यूज की, फाइनेंशियल, वही मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, फाइनल अकाउंट्स आगे से नहीं बोलना है, आगे से क्या बोलना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बी ए गुड कॉमर्स स्टूडेंट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनको हम फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं, एंड जो फाइनल अकाउंट्स हमने सीखे, जो फाइनेंशियल्स हमने सीखे हैं, उनको एनालाइज करना। एग्जाम्पल, आई डू इन्वेस्ट, जब मैं इन्वेस्ट करता हूं किसी कंपनी में, शेयर्स में, कैपिटल मार्केट में, आई डू स्टडी देयर बैलेंस शीट, देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आई स्टडी द पास्ट एंड आई प्रेडिक्ट द फ्यूचर। There are many tools by which I can study their financial statements and I take a rational decision. तो हमें जो हमें फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल्स हमें अवेलेबल करवा के दिए हैं, उसको एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना, कंपनी कितनी अच्छी चल रही है, उसका परफॉर्मेंस समझना, उसके पोजीशन समझना, राइट, उसका फ्यूचर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो आई सिंपली मीन, राइट, जो फंडामेंटल एनालिसिस होती है, लाइक एक्चुअली जब कैपिटल मार्केट में सीखोगे, राइट, और ऑब्वियसली मैं वो इसके एक्स्ट्रा सेशन भी लेते जाऊंगा, जैसे भी मैं 12th में वो जनरली करता हूँ 12th के बच्चों के साथ, राइट, बिकॉज उनको सेंस भी आ जाता है, तब तक 11th में ये सब चीजें बोलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यू विल लर्न देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस एंड अनदर होता है टेक्निकल एनालिसिस। आई एम टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें आता है रेशियो एनालिसिस आता है, कंपैरेटिव स्टडी आता है, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह आता है, दैट इज राइट फॉर अगेन 8 to 10 marks, 8 to 10 marks। कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, टैली एक्सेट्रा, लास्ट ईयर, मतलब एक्चुअली मतलब जब आप 11th में थे, उसके पहले वाले 11th, मतलब आपके टाइम सिलेबस चेंज हुआ, तब ये जो था ये 11th में हुआ करता था, 11th में हुआ करता था, एंड राइट अभी वो 12th में शिफ्ट किया है। एक्चुअली क्या चेंज है, अगर ओवरऑल सिलेबस में देखते हो, व्हाट इज द चेंज, 11th एंड 12th में चेंज किया है। 11th में ये चैप्टर हुआ करता था कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये चैप्टर हुआ करता था जो उन्होंने अभी 12th में डाला। एंड 12th में एक चैप्टर हुआ करता था, कोई बोलेगा मुझे, मैंने बोला था क्लास में कि जो 11th में शिफ्ट हुआ है, एनीवन कैन पिंक मी कि 12th का कौन सा चैप्टर 11th में पिंक उन्होंने शिफ्ट किया था, कोई मुझे पिंक कर सकता है? मैंने बोला था क्लास में बहुत बार कि एक ही चेंज है, बोला था, कौन सा चैप्टर था जो, यस इट इज सिंगल एंट्री, परफेक्ट, राइट, सिंगल एंट्री का चैप्टर 12th में हुआ करता था इनिशियली, सिंपल चैप्टर था जो उन्होंने अब 11th में शिफ्ट किया है। फॉर मी दिस इज ओनली द चेंज, मेरे लिए चेंज इतना ही है, आपके लिए तो नया सिलेबस सीखना है, मतलब आपके लिए एवरी चैप्टर इज न्यू, बट अगर आप मुझे पूछते हो व्हाट इज द चेंज इन योर 11th एंड 12th सिलेबस, फॉर मी जो 11th में जो चैप्टर होता था कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, अब मुझे वो 12th में सिखाना है, एंड जो 12th में सिंगल एंट्री चैप्टर होता था मैं जो 11th में सिखाता हूँ, दैट्स इट, फॉर मी दिस इज द चेंज। यस, खाली ये चीज नहीं, इनसाइड द चैप्टर एज वेल देयर आर मेनी न्यू एडिशंस, लाइक जब हम मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करता हूँ, इंट्रोडक्शन पार्टनरशिप एंड फाइनल, राइट, उसमें भी राइट लेवल इंक्रीज किए, जो पहले 12th की लेवल थी उससे ये लेवल थोड़ी डिफिकल्ट है, मैं नहीं बोलूंगा बहुत डिफिकल्ट है, राइट, यस, कंपैरेटिवली रियली गुड सिलेबस। इवन अगर आप मुझे कंपनीज अकाउंट में बात करते हो, जो प्रीवियस सिलेबस था दैट वाज एज पर ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956, 2013 में नया एक्ट आ गया, 2020 हो गए उनको नया सिलेबस लाने के लिए कंपनीज का, क्या बोला, ध्यान देना। या ये जो मैं बोल रहा था, कभी कभी ऐसे होता है, अगर नेट में वाईफाई में थोड़ा दिक्कत आती है तो समटाइम्स ये प्रॉब्लम आता है, बट मैं इंस्टेंटली ज्वाइन हो जाता हूँ बिकॉज वो अपने आप होता है, मुझे कुछ नहीं करना होता है उसके लिए एज सच, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड सम like silver lining in these old dark days, so we can bear with that. Actually I am taking lectures since morning 7, ये आप, ये मेरा
सेकंड लास्ट लेक्चर है आज का, इसके बाद 5:30 बजे मेरा एक और लेक्चर है। सो क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना। ये जो मैंने बोला कि 2013 में कंपनीज एक्ट आया था, नया एक्ट 2013 में, और हमारे सिलेबस में अब चेंज हो रहा है कि जो हमारे कंपनी अकाउंट थे ना, वो तभी भी ओल्ड सिलेबस के हिसाब से थे 2019 तक। 2020 मतलब अभी 2000 जो एग्जाम हुई उसके लिए भी ओल्ड के हिसाब से था। चेंज 2013 में हुआ मार्केट में, लॉ में, और हम सीख रहे हैं, राइट। चेंज दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, उन्होंने नया एक्ट के हिसाब से किया है। सो गुड थिंग फॉर यू, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, जो एक्चुअल में है वो आप सीख रहे हो, ठीक है। सो ये आपका सिलेबस है, तो मैंने आपको समझाया, एक पकड़ के चलना। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स विल बी फॉर मिनिमम 15 मार्क्स, मिनिमम 15 मार्क्स। एनपीओ विल बी मिनिमम 12 मार्क्स, वो भी 15 मार्क्स का होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट वो 12 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, राइट। ये दोनों तो मिनिमम, मतलब ये दोनों चैप्टर ही आपके 30 मार्क्स इंश्योर करते हैं। कौन से? चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। एक और चैप्टर था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मैंने वो डिस्कस नहीं किया अभी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये वर्ड आपने सुना होगा इन योर 11th फाइनल अकाउंट्स में, कि बिल्स रिसीवेबल हैव अ डेबिट बैलेंस, वी शो देम इन एसेट। बिल्स पेबल हैव क्रेडिट बैलेंस, वी शो देम इन लायबिलिटी। एक्चुअली बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं, बिल्स पेबल क्या होते हैं, उसकी अकाउंटिंग क्या होती है, ये लास्ट लास्ट ईयर 8 मार्क्स टू 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता था, राइट। सो राइट, द चैप्टर इज कंटिन्यूड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट, इज इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो बट प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जाता, राइट, एक्सेप्शनल केसेस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज होते हैं, बट अपने सिलेबस में मार्क्स के लिए हमें कुछ भी करना होगा, सो हम वो करेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर सिलेबस। आई डोंट नो द वेटेज, एग्जैक्ट वेटेज किसको भी नहीं पता है अभी तक, राइट, बट यस, जैसे वेटेज आ जाएगा होपफुली, ऐसे लगता है कि बुक्स आने के बाद, बुक्स मिलने के बाद, या अभी आज से शायद शॉप्स ओपन हो रहे हैं पुणे में, आई डोंट नो, अगर नेसेसरी तो ही बाहर जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं। अगर वो होते हैं, अगर बुक्स मिलते हैं, एंड अगर बुक्स में कहाँ पे कोई लाइक नवनीत वगैरह, उनके केस में जनरली मॉडल टेस्ट पेपर जो फॉर्मेट होता है वही फॉर्मेट बोर्ड्स का भी होता है, तो अगर वो मुझे मिलता है समहाउ, अभी तक बुक्स मार्केट में नहीं है, अगर मिलता है तो आई विल बी शेयरिंग विद, राइट, यू ऑल, उसमें प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज माई सिलेबस। इसमें से आपको टू बी वेरी फ्रैंक कुछ नहीं पता, बट एक चीज मैं बोलता हूँ, जिसका 11 का अकाउंट्स अच्छा है उसके लिए सिलेबस इजी है, और जिसका 11 का अकाउंट इतना अच्छा नहीं है, लाइक मेक श्योर, राइट, यू विल आस्क मी डाउट्स व्हेनेवर यू फेस देम, नेवर हेजिटेट। जो भी डाउट्स है यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी इवन आफ्टर द लेक्चर, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सॉल्विंग द डाउट। सेकंड, बी कंपैशनेट टुवर्ड्स योर अदर क्लासमेट्स, मतलब मे बी किसी और का क्वेश्चन बहुत सिली हो सकता है, बहुत सिंपल हो सकता है, मे बी उसका आंसर आपको आता होगा, right? Don't make fun of such questions. We have to be compassionate toward everyone in the class, and that is my culture. So कोई भी क्वेश्चन हो, right, every question, right, may be silly for you, but it is important for me, and it's my responsibility to address each and every question, and that I will be doing. 12th is important year because it is like board होते हैं, कुछ भी बोला, आप बोलोगे बोर्ड्स को, कोई बोलेगा सर मुझे सीए करना है, मुझे सीएस करना है, कोई बोलेगा मुझे एमबीए करना है, राइट, कोई लोगों को डिजाइनिंग करना है, जो कुछ भी है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड 12th हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस इन आवर करियर। जब कभी भी आप फ्यूचर में जॉब करने जाते हो, क्या, राइट, आपके रिज्यूम पे, आपके सीवी पे 12th के मार्क्स मैंडेटरी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो एवरी एग्जाम हैज दिस ओन रिस्पेक्ट, हमें वो रिस्पेक्ट देना चाहिए, एंड वी विल प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। दिस इज योर एंटायर सिलेबस दैट वी हैव टू लर्न। मैंने बोला एज सच, सो ये अपना सिलेबस है, और हमें ये पूरे साल में सीखना है। हम कैसे वर्क करेंगे मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान देना। मैं कैसे जाने वाला हूँ, मेरा सिलेबस का पैटर्न क्या रहता है। मैं सबसे पहले चैप्टर कौन सा लेने वाला हूँ, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। स्क्रीन शेयर हो रही है, एक सेकंड, मतलब आपको भी पता होना चाहिए कि हम कैसे करने वाले हैं।
यस, सो ध्यान देना, हम कैसे वर्कआउट करने वाले हैं, हमारा सिलेबस कब खत्म होगा, राइट। ओके, आर द कैलकुलेटर्स अलाउड? जितना मुझे पता है 11 12 के लिए कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं। आपके 11th में कैलकुलेटर अलाउड नहीं थे ना, तो 12th में कहां से आएंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैलकुलेटर्स अलाउड इन आईएससी सीबीएसई बट नॉट इन महाराष्ट्र। और कहाँ पे मुझे नोट भी नहीं मिली कि कैलकुलेटर्स अलाउड है बोल के। आई डोंट थिंक सो, कैलकुलेटर होने चाहिए अलाउड बट नहीं है। और अभी तक उसके रिलेटेड भी कोई ऐसे नोटिफिकेशन वगैरह मैंने देखा नहीं है। सो आई डोंट थिंक कि कैलकुलेटर्स आर अलाउड। कहाँ पे नहीं है, मैंने चेक किया था। अगर आप मुझे पहले वाला पूछते हो तो पहले कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं थे, ठीक है। और आपके 11th में भी अगर अलाउड नहीं थे, इसका मतलब 12th में भी नहीं रहेंगे, बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट ऑफ द न्यू सिलेबस, राइट। तो 12th में भी नहीं रहेंगे। देन वैसे भी जब कैलकुलेटर नहीं होते तो कैलकुलेशंस आर इजी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हम ओरली कर सकते हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। व्हाट विल बी माय सीक्वेंस, व्हाट विल बी माय सीक्वेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पे मेरे सीक्वेंस लिखता हूँ। मैं सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लूंगा, दिस विल बी माय चैप्टर 1। मैं रेड से लिखता हूँ, जो दिखेगा आपको, दिस विल बी माय चैप्टर 1 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसका रीजन है कि इसके रिलेटेड ट्रांजैक्शंस फाइनल अकाउंट्स में, सोल ये आपके पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में। सो आई विल बी स्टार्टिंग विद द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मे बी फॉर मिनिमम 10 मार्क्स का चैप्टर रहेगा, मिनिमम 10 मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वैसे देखा जाए बिल्स ऑफ एक्सचेंज लास्ट ईयर 15 मार्क का चैप्टर होता था, 15। मैं बोल रहा हूँ अगर कितना भी कम हुआ तो वो 10 मार्क्स से कम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज मिनिमम 10 मार्क्स। लास्ट ईयर वो 17 मार्क का चैप्टर होता था, इंक्लूडिंग 2 मार्क्स एमसीक्यू। ऐसे 17 मार्क का होता था, मैं उसको ऑलमोस्ट 10 मार्क्स पे लेके चल रहा हूँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद आई विल मूव टुवर्ड्स इंट्रोडक्शन टू द पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। ये चैप्टर मैं ले लूंगा, ठीक है। देन आई विल टेक दिस चैप्टर एनपीओ, एनपीओ थर्ड चैप्टर एनपीओ। देन राइट, I will go for this chapter, admission retirement date. Admission retirement I will be taking together because many adjustments are common. मैं एक ही टाइम सिखाऊंगा और then we will be solving the questions by questions. पहले एडमिशन खत्म करेंगे, फिर रिटायरमेंट खत्म करेंगे, डेट खत्म करेंगे, like that. So ये मैं तीन को साथ में रखता हूँ बिकॉज मेरे लिए वो तीनों एक ही है, रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। Once I complete reconstitution, I will be starting with dissolution of the partnership firm. ये मेरा 5th चैप्टर रहेगा। Then I will move to चैप्टर नंबर 7, सॉरी ये चैप्टर नंबर 6 रहेगा, राइट ना। चैप्टर नंबर 6 कौन सा? कंपनी अकाउंट्स। डिसोल्यूशन 5th आ गया, कंपनी अकाउंट्स इज 6th चैप्टर फॉर मी। वो होने के बाद आई विल, दिस विल बी 7th चैप्टर फॉर मी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड चैप्टर नंबर 8 इज कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। सिलेबस कब तक खत्म होगा? सिलेबस भले ही कुछ भी हो, I assure you my syllabus will be completed by, मैं आपको डेट बोल रहा हूं, मिनिमम या लेटेस्ट बाय 15th नवंबर 2020, राइट। या अगर आप मुझे ये बोलते हो कि सर टेक 2 वीक्स एक्स्ट्रा, 30th नवंबर 2020 को माय एंटायर सिलेबस विल बी कंप्लीट। ये मैं आज आपको डेट देता हूं, 30th नवंबर को मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा एंड आई विल स्टार्ट टीचिंग। आज से मैं सिखाना स्टार्ट कर दूंगा। सो 30th नवंबर 2020 को मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। योर एग्जाम्स आर जनरली एंड ऑफ फेब्रुआरी, सो आई विल से मार्च फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपके एग्जाम्स रहेंगे। आई डोंट थिंक दे विल एक्सटेंड द एग्जाम, क्योंकि अगर एग्जाम एक्सटेंड करने जाएंगे तो एवरी ईयर एक्सटेंड करने पड़ेंगे एंड योर सफिशिएंट टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मार्च तक हर चीज कवर हो सकती है। सो गवर्नमेंट आपके एग्जाम्स मुझे नहीं लगता पोस्टपोन करेगा। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च की जगह सेकंड वीक कर देंगे मैक्स टू मैक्स। समझ में आ रहा है? तो मार्च के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम्स रहेंगे। सो मेरे पास रिवीजन के लिए दिसंबर प्लस जनवरी
प्लस फरवरी है. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं मिनिमम 2 टाइम्स रिवीजन ले लूंगा. जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने जो बोला यहां तक मैं कंसेप्चुअल प्लस इतना डीप में ले लूंगा कि ये रिवीजन आपके लिए बहुत इजी लगे. सो क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. 30 नवंबर को अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट 2 मंथ्स में हम पूरा रिवाइज करेंगे. 2 मंथ एक्चुअली 3 मंथ्स मिलते हैं मुझे, राइट. जनरली मैथ्स का सिलेबस 15 दिसंबर तक खत्म हो जाता है. मैथ्स का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, राइट. मैथ्स की हम ऑलमोस्ट 2.5 मंथ की रिवीजन लेते हैं 12th में. अकाउंट्स की बात करें तो मैं 3 मंथ्स की रिवीजन लेता हूं. एंड और मैं करते आया हूं, मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूं. अगर नहीं होता तो मैं डायरेक्टली नहीं बोलता हूं, मैं ऐसे हवा में कुछ नहीं बोलता. सो देयर विल बी 3 मंथ्स रिवीजन, राइट, बिफोर योर बोर्ड्स. एंड राइट, मैं क्या क्या कवर करता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई एम ऑलमोस्ट रेडी विथ माई नोट्स एज वेल. जो नए सिलेबस के हिसाब से मेरे नोट्स है. नोट्स आर डिवाइडेड इनटू, राइट, नोट्स आर डिवाइडेड इनटू बेसिकली 4 पार्ट्स. नोट्स आर डिवाइडेड. आपको फिजिकल कॉपी जब हम लॉकडाउन के बाद मिलेंगे तब आपको फिजिकल कॉपी मिल जाएंगे. मीनवाइल आई विल बी गिविंग यू सॉफ्ट कॉपी, राइट, व्हाट्सएप ग्रुप पे या मैं अपने ऐप पे अपलोड कर दूंगा. ऐप का मैं बोलता हूँ, राइट, आज क्लास स्टार्ट हुआ है, विद इन 1 to 3 डेज हम वो ऐप पे आपकी बैच क्रिएट करेंगे एंड आई विल ऐड यू ऑल इन द बैच. सो डोंट वरी, अभी तक कोई डरने की जरूरत नहीं. ऐप डाउनलोड करके रखो, बट आप उसमें कुछ देख नहीं सकते, राइट. आप, राइट, जब मैं वो बैच एक्चुअली वहां पे क्रिएट करके जब ऐड करूंगा तब आपको एक्सेस मिलेगा. आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू, राइट, इन ड्यू कोर्स, डोंट वरी. सो एवरी चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. मैं नोट्स की बात कर रहा हूं. 4 parts. 1, textual questions. जो भी आपके टेक्स्ट बुक में एवरी क्वेश्चन सॉल्व्ड प्लस अनसॉल्व्ड. सेकंड, एडिशनल क्वेश्चंस. थर्ड, लास्ट 10 years exam questions. And if you know, every year there are 2 exams. एक होती है मार्च में, एक होती है अक्टूबर में. मतलब वैसे देखा जाए 20 बोर्ड्स के पेपर, 20 बोर्ड्स के पेपर. सो चैप्टर वाइज मैंने उसको अलोकेट किया होता है, राइट. चैप्टर वाइज हम उसको उस चैप्टर के नीचे डाल देते हैं. नंबर 4, होमवर्क क्वेश्चंस. यू विल गेट होमवर्क. मैं 11th में जनरली होमवर्क नहीं देता था, बट 12th में यू विल ऑल्सो गेट होमवर्क फॉर योर प्रैक्टिस. इसमें से ये 3 चीजें मैं क्लास में करता हूं. आई गेट सॉल्व इन द क्लास. चाहे तो यू कैन टॉक विथ योर फ्रेंड्स हु वर विथ मी इन 11th. दे नो द अमाउंट ऑफ द प्रैक्टिस दैट आई गेट डन इन द क्लास. मैं concept plus practice, I believe in both concept and practice. Practice makes man as well as woman perfect. Try to understand. So ये मैं क्लास में कराऊंगा. मेरे हिसाब से मिनिमम 5 नोटबुक्स लगेंगे 200 पेजेस की. मिनिमम 5, बिकॉज एवरी ईयर कम से कम 5 तो लगते हैं. मिनिमम 5 नोटबुक्स लगेंगे 200 पेजेस की. इतना क्लास में मैं सॉल्विंग करवाता हूं, राइट. उसके बाद होमवर्क क्वेश्चंस, राइट, ये यू हैव टू डू ऑन योर ओन. बट अगर इसमें से कोई डाउट्स होते हैं, आई डू सॉल्व इन द क्वेश्चंस. तो आप पकड़ के चलो ऑलमोस्ट 40% मैं क्लास में करूंगा, 60% आपको. कोई होमवर्क क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकते हैं, उस केस में आई विल बी सॉल्विंग देम इन द क्लास. एंड लास्ट में, लास्ट 3 मंथ्स में, राइट, रिवीजन के लिए रिवीजन क्वेश्चंस. इसकी अलग से शीट मिलती है आपको. ये क्लास के नोट्स में ऐड नहीं होते. उसका तब हम अलग से उसको प्रिंट करके एक बुकलेट बनाते हैं. आई डू दैट इन कैंप. ये बाहर का मुझे नहीं पता, मैं कैंप की बात कर रहा हूँ. कैंप में मैं ये करता हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो
ये सब होता है, एंड बाय द टाइम यू विल बी अपियरिंग बोर्ड्स। मैं तो बच्चों को बोलता हूँ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, अगर मेरा क्लासेस ठीक से किए, सिंसियरली किए, जो मैंने बोला है वो किया है, अगर आपने मुझे भी साथ दिया, जो मैंने लेक्चर में किया है, अगर वो भी ध्यान से करते हो लेक्चर्स में, तो भी आपको एडिशनली करने की जरूरत नहीं। बट ऑब्वियसली मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि एक्स्ट्रा करो, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतना करने के बाद मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र बोर्ड के लिए इससे ज्यादा रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। दिस इज लाइक, सोच भी नहीं सकते इतना हो जाएगा। सो बाय द टाइम यू विल बी अपियरिंग योर पेपर्स, राइट, आप कोई भी क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। सो जनरली मेरे नोट्स ऐसे डिवाइड किए जाएंगे। सर ये पॉसिबल होगा क्या, क्या लॉकडाउन ये कितने दिन चलेगा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। दैट इज वेरी क्वेश्चन। मैंने एक आपको ऑलमोस्ट एक 16 पेजेस की क्वेश्चनियर ड्राफ्ट करके दी थी। टुक मी लाइक ऑलमोस्ट होल डे टू प्रिपेयर दैट। मुझे नहीं पता है कितने बच्चों ने एक्चुअली देखा, कितने लोगों ने वो ठीक से पढ़ा, बट आई थॉट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर दैट विथ यू। तो आई सिंपली मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम ऐसे करेंगे कब तक करेंगे, जब तक गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं करती फेस टू फेस लेक्चर्स लेने के लिए। सपोज कल गवर्नमेंट बोलती है स्टार्ट विद द फेस टू फेस बैचेस, स्टिल हम कल से स्टार्ट नहीं करेंगे। वी विल टेक 5 to 6 days। हम एक्चुअली चेक करेंगे कि वो सब चीजें, नहीं तो नंबर अचानक से इंक्रीज हो जाएगा। इवन आई डोंट वांट टू गेट अफेक्टेड एंड आई आल्सो डोंट वांट यू टू गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस वायरस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो अगर आज गवर्नमेंट हमें बोलती है कि यू कैन स्टार्ट विद द कोचिंग क्लासेस, still I will wait for 3 to 4 days, minimum 1 week. We will evaluate the situation and then we will start. And अगर ऐसे क्लासेस हो रहे हैं जैसे अभी मैं ले रहा हूँ, now you will be feeling कि एटलीस्ट मैं सामने हूँ आपके, और मैं जो भी लिख रहा हूँ मैं वो ले रहा हूँ, मैं वही। बहुत बच्चों ने मुझे पूछा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आस एंड अदर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं लाइव सिखा रहा हूँ, जैसे लाइव क्रिकेट मैच चलती वैसे चल रहा है ये। बाकी लोगों जैसे नहीं कि रिकॉर्ड कर रहा हूँ आधे घंटे के मोबाइल पे और मैं ग्रुप पे डाल रहा हूँ। देखो कॉमन सेंस होना चाहिए। अगर सपोज ये अक्टूबर तक गया, ये सितंबर तक गया, तो आप क्या पूरे साल उनके रिकॉर्डिंग देखते बैठोगे क्या? एंड मे बी मैंने 2 week लेट बैच स्टार्ट किए, बट विथ थॉट, विथ सम होमवर्क एट माई एंड, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, वो करके मैंने बैच स्टार्ट किए। तो अगर मे बी हमें मई एंड खत्म होने तक या मे बी जून एंड खत्म होने तक भी होता है, तो हमारे क्लासेस ऐसे चलेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एकतम कैंप एंड अदर्स। जो भी कर रहे हैं परफेक्शन के साथ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं विथ सम थॉट प्रोसेस कर रहे हैं। एंड ये जो मैंने लिखा है वो आपको मैं इसको यू कैन फाइंड, आई कैन व्हाट्सएप इट। जो बच्चों मेरे साथ 11 से थे उनको पता है कि इवन राइट ये आई कैन शेयर विथ यू, सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो हम ऐसे करेंगे जब तक चलेगा, राइट, लॉकडाउन हम डेली लेक्चर्स लेते रहेंगे। सो नाउ आई विल स्टार्ट विथ माई टीचिंग। ये सब इंट्रोडक्शन था। Try to understand. I will revise some things of 11th that is very important for me, right? इतने दिनों से बैठे हो, मे बी देर आर सम स्टूडेंट्स, आई अप्रिशिएट देम, जिन्होंने मेरे कंसाइनमेंट के भी लेक्चर्स देखे एंड दे हैव बीन आस्किंग मी डाउट्स। मैंने 2 ट्रेडिंग अकाउंट के लेक्चर्स डाले थे, आई थिंक बहुत लोगों ने देखे होंगे। दैट विल हेल्प यू टू थिंक समथिंग बियॉन्ड लाइक व्हाट यू लर्न इन द बुक्स यार। एंड नो वन विल टीच यू, ये भी मैं लिख के देता हूं, नो वन विल टीच यू, नो वन। जो मैंने वहां पे जो लिया है ना, एक्चुअली इट वाज माय इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ द सीए फाउंडेशन, जो मैंने लेना स्टार्ट किया था। तो वो मैं उन बच्चों का अप्रिशिएट करता हूँ जो अभी भी दे आर फाइंडिंग द टाइम। एक्चुअली टाइम तो बहुत है, बट फिर भी उसमें खुद के डेवलपमेंट के लिए करे। देयर आर स्टूडेंट्स हु आर सॉल्विंग द फाइनल अकाउंट क्वेश्चंस, दे आर आस्किंग मी द डाउट्स, जैसे मुझे हो रहा है पॉसिबल मैं वैसे उनको रिप्लाई कर रहा हूँ, राइट। I am recommending them to watch my some of the videos, some parts of that which may be relevant for you. So at the back of राइट, हम वो उस पर वर्क कर रहे थे, ऐसे नहीं कि हम वर्क कर रहे हैं आज से। तो अब प्रॉपरली आई विल बी डिवोटेड टू यू। मॉर्निंग में मेरे सीए फाउंडेशन के लेक्चर चल रहे हैं, आफ्टरनून में आपके लेक्चर चलेंगे। सो अब हम देखते हैं, इफ यू रिमेंबर, राइट, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। विच वर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स? कोई मुझे बोलेगा एनीवन,
या आप मुझे टाइप करके डालो व्हाट वर द टाइप्स ऑफ द अकाउंट्स, देखते हैं ना क्या टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, मुझे भी समझ में आएगा क्या बच्चे क्या सोचते हैं। व्हाट वर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, आपको नाम लिखने हैं उनके इन योर चैट बॉक्स। यस प्लीज। ओके। अच्छा, नाउ आई कैन बाइफरकेट द स्टूडेंट्स, अब मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है। So there are two sets of answers. There are two sets of answer. One, some students are saying types of accounts are real account, personal account, and nominal account. And there is another set of students वो मेरे साथ 11th में थे, they are saying ये गलत है, ऐसे बात नहीं कर रहा हूं, they are correct type but they are called as, right, you can say they are like उनके लिए golden rules apply होते हैं, golden rules, debit comes in, credit goes out, रियल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट के लिए, डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम्स नॉमिनल अकाउंट के लिए, विच इज स्क्रैप, स्क्रैप रद्दी। जो भी आपने फिर 11th में अगर वो रूल सीखे ना, आपने 11th में कुछ नहीं किया है। बुरा लगेगा जो मैं बोल रहा हूं बट दैट इज द रियलिटी। अगर आप वो रूल्स अप्लाई कर रहे हो गोल्डन रूल्स, राइट, स्क्रैप है, इलिटरेट हो आप लोग। एक्चुअली modern rules are followed while accounting, and they are, right, according to modern rules, types of accounts are asset accounts, second is liabilities account, third is income accounts, and fourth is expense account। गलती आपकी नहीं है, गलती सच्ची में आपकी नहीं है, और थोड़ी गलती आपकी भी है बिकॉज यू नेवर वेंट बियॉन्ड द सिलेबस। आपको जो कॉलेज में बोला वही आपने किया, कभी आपने ये नहीं देखा कि इसकी कुछ रिसर्च भी नहीं किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनके लिए गोल्डन रूल लगते हैं जो मेरे हिसाब से स्क्रैप है। या स्क्रैप थोड़ा वर्ड बुरा लगेगा आप लोगों को, मेरे हिसाब से इरिलेवेंट है। I divide accounts. I means all the chartered accountants. I means the persons who actually follow the accounting. I means the accounting fraternity in India. Right? They divide accounts into four types: asset account, liability account, income account, and expense account. एंड उनके लिए मॉडर्न रूल्स फॉलो किए जाते हैं। कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं? मॉडर्न। मॉडर्न रूल्स फॉलो किए जाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय दैट। A account, ledger account shows changes, increase and decrease. Try to understand. I am talking about increase and decrease. मैं यहाँ पे लिखता हूँ rules. Try to understand because I will be referring to these rules. कोई भी account you know is divided into two sides. One side is called as debit side, another side is called as credit side. आप लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोलते हो, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलते हो, ठीक है। असेट अकाउंट
और एक्सपेंस अकाउंट. लाइबिलिटी अकाउंट और इनकम अकाउंट. व्हाट आई वांट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब आप मेरे साथ ज्वाइन हुए हो तो जो भी आपने सीखा है, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वो थोड़ी देर बाजू में रखो. हैव ए एम्प्टी कप, तो ही मैं उसमें आई कैन पोर, तो ही मैं उसको फिल कर सकता हूं. डोंट कम विथ प्रिजम्पशंस. पूरा ब्लैंक रखो. अगर झोली खाली है तो भरी जाएगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी आर हियर टू लर्न. जो भी आपने अभी तक सीखा है, नॉट नेसेसरी हर चीज करेक्ट है, एंड आई विल प्रूव दैट ड्यूरिंग ए कोर्स ऑफ टाइम. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो ध्यान देना. मैंने बोला आई जनरली डिवाइड अकाउंट्स इनटू 4 टाइप्स: असेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, इनकम अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट. आगे से मैं जब भी बोलूंगा तो आई विल बी क्लासिफाइंग अकाउंट्स इनटू दीज 4 टाइप्स ओनली. एंड ऑलवेज रिमेंबर, in account represents change. like example, मैं क्या बोल रहा हूं, it is an increase in or it is decrease in that. example, cash increase हो गई, cash, business receives the cash, cash increase हो गई, business pays the cash, cash decrease हो गई. we purchase the machinery, business purchase the machinery, machinery increase हो गई. business sold the machinery, machinery decrease हो गई. we purchase goods on credit, हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेस किए, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई. एंड बाद में हमने उनको पेमेंट किया, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई. वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, डेटर्स जनरेट हो गए, डेटर्स इंक्रीज हो गए, असेट इंक्रीज हो गई. एंड जब बाद में वो हमें पे करेंगे, डेटर्स विल डिक्रीज. सो ये ट्रांजैक्शंस क्या दिखाते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड. एग्जांपल मैं बोलता हूं, कैपिटल अकाउंट, राइट? ओके, कैपिटल इंट्रोड्यूस, capital introduce. Try to understand. It talks about capital account, it talks about capital account, it talks about cash account. एक दो एग्जांपल दूंगा तो जल्दी समझ में आएगा मुझे क्या बोलना है. because owner brings capital into business, I say capital increase हो रहा है, at the same time cash भी increase हो रही है. and you must be knowing assets is equal to capital plus liability. so यहाँ पे असेट इंक्रीज हो रही है बिकॉज कैश इज असेट, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, असेट इंक्रीज हो रही है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, बैलेंस शीट टैली होगी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द बैलेंस शीट. असेट साइड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. देन सेकंड, राइट, ड्रॉइंग्स मेड. ड्रॉइंग्स की वजह से कैपिटल डिक्रीज होता है एंड कैश डिक्रीज होती है. कैपिटल डिक्रीज होगा लायबिलिटी पे, असेट पे कैश डिक्रीज होगी, बैलेंस शीट विल टैली. तो कभी मैं बोल रहा हूँ कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कभी मैं बोल रहा हूँ कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, कभी मैं बोल रहा हूँ कैश इंक्रीज हो रही है, कभी मैं बोल रहा हूँ कैश डिक्रीज हो रही है. नेक्स्ट, मशीनरी परचेस्ड ऑन क्रेडिट. इसमें दो अकाउंट्स है, एक है मशीनरी अकाउंट विच इज असेट अकाउंट, एंड दूसरा है दैट पार्टी अकाउंट, ही इज माय लायबिलिटी, क्रेडिटर फॉर मशीनरी. क्रेडिटर अलग एंड क्रेडिटर फॉर मशीनरी अलग. क्रेडिटर्स आर फॉर गुड्स एंड क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी मतलब फॉर फिक्स्ड असेट अदर देन गुड्स. मशीनरी पार्टी अकाउंट, जो भी रहेगा बंदा उसका नाम. आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन माय मशीनरी इन द बिजनेस विल इंक्रीज. मेरे पास मशीनरी आएगी, मशीनरी विल इंक्रीज एंड माय लायबिलिटी टुवर्ड्स दैट पार्टी विल आल्सो इंक्रीज. असेट इंक्रीज हो रही है असेट साइड पे, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी साइड पे, बैलेंस शीट विल टैली. सो इट इज इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी. बाद में हमने उसको पेड किया, पेड टू सप्लायर ऑफ मशीनरी, सप्लायर ऑफ मशीनरी. इसके वजह से ट्राई टू अंडरस्टैंड, माय लायबिलिटी टुवर्ड्स पार्टी विल डिक्रीज, लायबिलिटी टुवर्ड्स पार्टी विल डिक्रीज एंड माय कैश और बैंक बैलेंस विल डिक्रीज. दोनों में से कुछ तो डिक्रीज होगा. लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, कैश डिक्रीज हो गई, बैलेंस शीट टैली होगी. आई एम टॉकिंग अबाउट इंक्रीज एंड डिक्रीज. ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इंक्रीज एंड डिक्रीज की बात कर रहा हूं. सैलरी पेड,
एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, सैलरीज एंड एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, कैश डिक्रीज हो गई, असेट डिक्रीज हो गई। कैश की जगह मैं असेट लिखता हूं फिर। अब एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, कैश डिक्रीज हो गई। एग्जांपल, गुड्स सोल्ड, इनकम इंक्रीज हो गई, सेल होने पे इनकम होगी, इनकम विल इंक्रीज, कैश विल इंक्रीज, कैश को मैं असेट लिखता हूं, असेट विल इंक्रीज। सो क्या हो रहा है देखो ना, समटाइम्स असेट इंक्रीज होती है, समटाइम्स असेट डिक्रीज होती है, समटाइम इनकम इंक्रीज होते हैं, समटाइम्स इनकम डिक्रीज होते हैं। लाइक सेल करोगे तो इनकम इंक्रीज होगी, सेल्स रिटर्न की वजह से इनकम डिक्रीज होगी। समटाइम एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं, समटाइम्स एक्सपेंस डिक्रीज होते हैं। लाइक परचेस करोगे तो एक्सपेंस इंक्रीज होंगे, और रिटर्न्स होंगे, परचेस रिटर्न करोगे तो एक्सपेंसेस विल डिक्रीज, बराबर। सैलरी पे करोगे, सैलरी इंक्रीज, रेंट पे करोगे, रेंट एक्सपेंस इंक्रीज, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करोगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इंक्रीज होगा, डेप्रिसिएशन दोगे एसेट पे, डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस इंक्रीज होगा। सो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। सो एक्चुअली अकाउंटिंग इज नॉट अदर देन इंक्रीज एंड डिक्रीज। क्या है अकाउंटिंग? इंक्रीज एंड डिक्रीज। अगर ये समझ में आ गया तो आप कोई भी दुनिया की एंट्री लिख सकते हो। अकाउंटिंग इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन असेट, लाइबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस। क्या बोला मैंने? अकाउंटिंग इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंस। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कभी एसेट इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, इनकम एक्सपेंस इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकते हैं। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, बिकॉज ऑफ द ट्रांजैक्शंस इनमें चेंजेस होते हैं एंड इन चेंजेस को हमें रिकॉर्ड करना है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। बिकॉज ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन इज अ डीलिंग बिटवीन द टू पर्सन्स which leads to exchange of goods and services for money or money's worth। ये आपने 11th में डेफिनेशन सीखी होगी। So transactions create changes in assets, liabilities, income, expense. So मैं बोल रहा था ट्रांजैक्शंस क्रिएट चेंजेस, ट्रांजैक्शंस की वजह से इनमें क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं, एंड हमें वो चेंजेस रिकॉर्ड करने। सो मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको पता है लेकिन आपको ये नहीं पता जो मैं बोल रहा हूँ। ट्रांजैक्शन की वजह से इनमें चेंजेस होते हैं। इफ यू रिसीव कैश, कैश इंक्रीज होगी। इफ यू पे द कैश, कैश विल डिक्रीज होगी। अगर आप चेक्स मिलते हैं, आपको चेक जब क्लियर होंगे, बैंक बैलेंस विल इंक्रीज। अगर चेक्स इश्यू करोगे, बैंक बैलेंस विल डिक्रीज। You will purchase the machinery, machinery will increase. Because of depreciation, machinery will decrease. If you purchase goods on credit, creditors liability will increase. जब आप उनको पेमेंट करोगे, liability will decrease. When you sell the goods on credit, debtors increase होंगे। जब debtors आपको पेमेंट करेंगे, debtors will decrease. क्या कर रहे हो? आपने सैलरी पेड की, सैलरी इंक्रीज हो गई। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पेड किए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गए। गुड्स परचेस किए, परचेसेस इंक्रीज हो गए। गुड्स सेल किए, सेल्स इनकम इंक्रीज हो गई। क्या कर रहे हो आप? ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू आर इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हो इनमें, एंड वो इंक्रीज एंड डिक्रीज हमें रिकॉर्ड करना है। मतलब जब मैं अकाउंट को देखता हूं, मैं उसको इंक्रीज डिक्रीज के फॉर्म में देखता हूं। मे बी आपको अलग लगेगा कुछ, आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हो आप, बट ध्यान देना, बाय द एंड आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूं। ध्यान देना। असेट अकाउंट क्या होता है? असेट अकाउंट दिखाता है इंक्रीज इन असेट एंड डिक्रीज इन असेट। सो असेट अकाउंट में जब जब इंक्रीज होगा, हम उसको इंक्रीज साइड पे लिखेंगे। सो इंक्रीज, असेट की इंक्रीज साइड लेफ्ट हैंड साइड रहती है, एंड डिक्रीज साइड राइट हैंड साइड रहती है। दिस इज इंक्रीज इन असेट साइड, दिस इज डिक्रीज इन असेट साइड। सेम रूल इज फॉर एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड इंक्रीज दिखाता है, राइट हैंड साइड क्रेडिट दिखाता है। हम उसको इंक्रीज साइड या डिक्रीज साइड नहीं बोलते, हम उसको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इसका मतलब असेट की डेबिट साइड मतलब इंक्रीज इन असेट, एंड असेट की क्रेडिट साइड मतलब डिक्रीज इन असेट। आप बोलोगे सर कैसे? ध्यान देना।
ऑन सिमिलर बेसिस लाइबिलिटी एंड इनकम के केस में एग्जैक्टली उल्टा होता है. उनके केस में जब भी इंक्रीज होगा, I will write down on increase side, which is a credit side, right hand side, and their decrease side is debit side. सर कैसे आप हमें प्रूव करके दिखा सकते हो? ध्यान देना. We started business with a capital of rupees 1 lakh. हमने कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसके वजह से कैश विल इंक्रीज. यस, कैश असेट है. कैश कौन सा अकाउंट है? असेट. असेट विल इंक्रीज एंड लाइबिलिटी विल आल्सो इंक्रीज. हमें असेट इंक्रीज करनी है, कैश इंक्रीज करनी है, तो कैश का इंक्रीज साइड पे लिखो. कौन सी इंक्रीज साइड है? लेफ्ट हैंड साइड, डेबिट. इसलिए हम बोलते हैं कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा. क्या बोलते हैं? कैश को डेबिट किया जाएगा. हम बोलते हैं कैश अकाउंट को डेबिट करो. डेबिट करो मतलब उसके डेबिट साइड पे लिखो, मतलब उसके इंक्रीज साइड पे लिखो. एक्चुअली हम कैश को इंक्रीज करें, तो इसका मतलब है हमने कैश को 1 लाख से इंक्रीज किया. एंड कैपिटल को भी इंक्रीज करना है. कैपिटल को भी इंक्रीज करना है. लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है बिजनेस की टूवर्ड्स ओनर, तो मैं बोलूंगा लाइबिलिटी के इंक्रीज साइड पे लिखो. लाइबिलिटी की इंक्रीज साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड. इसलिए बोलते हैं हम कैपिटल. वो लाइबिलिटी कौन सी है? कैपिटल. तो कैपिटल के क्रेडिट साइड पे लिखते हो, इसलिए हम बोलते हैं कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है. एंड देयरफॉर वी से कैश को डेबिट करना है एंड कैपिटल को क्रेडिट करना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस ट्रांजैक्शन के बाद योर कैश विल इंक्रीज बाय 1 लाख, योर कैपिटल विल इंक्रीज बाय 1 लाख. कैश इंक्रीज बाय 1 लाख, असेट इंक्रीज बाय 1 लाख, एसेट को डेबिट. कैपिटल इंक्रीज बाय 1 लाख, लाइबिलिटी इंक्रीज बाय 1 लाख, क्रेडिट. हमने सैलरी पेड की, 10,000 की सैलरी दी, तो सैलरी पे करने के बाद योर सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज होगा. सो एक्सपेंस इंक्रीज होगा, तो मैं बोलूंगा एक्सपेंस के इंक्रीज साइड पे लिखूंगा. मैं सैलरी एक्सपेंस के इंक्रीज साइड पे लिखूंगा. एक्सपेंस की इंक्रीज साइड कौन सी है? एक्सपेंस की इंक्रीज साइड डेबिट साइड है, तो मैं यहाँ पे 10,000 लिख दूंगा. सैलरी अकाउंट के, सपोज ये सैलरी अकाउंट है, मैं 10,000 लिख दूंगा. 10,000. एंड मेरी कैश कम होगी ना, जब मैं सैलरी दूंगा तो कैश कम होगी. कैश कम होगी, असेट कम होगी, तो मैं बोलूंगा असेट के डिक्रीज साइड पे लिखो. इसलिए हम बोलते हैं एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा. सैलरी डेबिट होगा एंड कैश क्रेडिट होगा. अब ध्यान देना, मैं इसको ठीक से लिखता हूं, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है. और मैंने आपको पहले ही रिक्वेस्ट की है कि डोंट बी इन इंप्रेशन दैट यू नो एवरीथिंग. डोंट बी इन इंप्रेशन कि आपको हर चीज पता है. If I start asking the question, then you will feel you don't know anything. So it's my sincere request, don't be under the influence ki you know everything. So नीचे देखता हूं, ध्यान देना. मैंने पहले बोला आपको, अभी राइट, मेरे पास कैश थी 1 लाख की. वी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. ध्यान देना, दिस इज कैश, दिस इज कैपिटल. मैंने बोला वी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो मैंने कैश इंक्रीज की. कैश इंक्रीज, डिक्रीज, कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल डिक्रीज. मैंने बोला कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख, तो मैंने कैश को डेबिट किया 1 लाख, और कैपिटल को भी इंक्रीज करना है 1 लाख. इसलिए हम बोलते हैं कैश को डेबिट करो, कैपिटल को क्रेडिट करो. फिर मैंने सैलरी पेड की, तो मेरा कौन सा अकाउंट आ गया? सैलरी अकाउंट आ गया. ध्यान देना, मेरा सैलरी अकाउंट आ गया. सैलरी कौन सा अकाउंट रहता है? एक्सपेंस. एक्सपेंस डेबिट मतलब इंक्रीज, क्रेडिट मतलब डिक्रीज. जब मैं सैलरी पे करूंगा, अभी मेरी कुछ सैलरी अभी तक पेड हुई क्या? नहीं. मैंने 10,000 की सैलरी पेड की, तो मेरी सैलरी कितनी हो गई अभी तक? सैलरी एक्सपेंस कितना हो गया? 10,000. तो सैलरी इंक्रीज की 10,000 से, और कैश डिक्रीज करनी है 10,000 से. डिक्रीज साइड इज अ क्रेडिट, इसलिए हम सैलरी को डेबिट बोलते हैं, कैश को क्रेडिट बोलते हैं. अब कैश कितनी रहेगी आपके पास? देखो 90,000. पहले 1 लाख इंक्रीज है, डिक्रीज, इंक्रीज इज 1 लाख, डिक्रीज इज 10,000. सो नेट इंक्रीज कितना है? 90,000. बैलेंस इज नेट इंक्रीज. बैलेंस क्या होता है? नेट इंक्रीज. वी परचेज द गुड्स. हमने एग्जाम्पल 20,000 के गुड्स परचेस किए कैश पे, तो अब कौन सा अकाउंट आएगा? परचेस अकाउंट आएगा. ध्यान देना, सिंपल सिंपल है. परचेसेस अकाउंट. परचेसेस कौन सा अकाउंट होता है? एक्सपेंस. मतलब डेबिट इज इंक्रीज, क्रेडिट इज डिक्रीज.
जब हम गुड्स परचेस करेंगे तो परचेस एक्सपेंस इंक्रीज होगा, मैं इंक्रीज साइड पे लिखूंगा 20,000, इसलिए हम बोलते हैं परचेस को डेबिट करना है। परचेस को डेबिट कर रहे हो बिकॉज एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, परचेस एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, उसकी इंक्रीज साइड डेबिट होती है, तो हम बोलते हैं परचेस के डेबिट पे लिखो, इंक्रीज साइड पे लिखो मतलब डेबिट साइड पे लिखो। एंड मैंने 20,000 कैश दी है, मेरी कैश कम हुई है, तो कैश के डिक्रीज साइड पे लिखो, विच इज डिक्रीज साइड, क्रेडिट साइड। इसलिए हम बोलते हैं परचेस को डेबिट करना है एंड कैश को क्रेडिट करना है, इसलिए एंट्री बनती परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अभी मेरे पास कैश कितनी है देखो, इंक्रीज डेबिट साइड इज इंक्रीज साइड, क्रेडिट साइड इज डिक्रीज साइड। कैश इंक्रीज बाय 1 लाख, कैश डिक्रीज बाय 30,000, कैश कितनी है 70,000। कैपिटल देखो, क्रेडिट इज इंक्रीज, डेबिट इज डिक्रीज। अभी दिख रहा है क्रेडिट 1 लाख है, डेबिट 0, इंक्रीज 1 लाख है, डिक्रीज 0 है, इसलिए कैपिटल में बैलेंस 1 लाख है। सैलरी देखो, डेबिट इंक्रीज है, हम हमेशा इंक्रीज माइनस डिक्रीज करते हैं, जब भी बैलेंस निकालते हैं हम इंक्रीज माइनस डिक्रीज करते हैं। सो सैलरी के केस में इंक्रीज इज डेबिट विच इज मोर देन डिक्रीज क्रेडिट, 10,000 डेबिट बैलेंस है। परचेस केस में 20,000 डेबिट बैलेंस है। सपोज यही 20,000 गुड्स हमने 30,000 में सेल किया ऑन कैश, तो एक अकाउंट आ जाएगा सेल्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट आ जाएगा, सेल्स, सेल्स अकाउंट। सेल्स कौन सा अकाउंट रहता है, इनकम, एंड इनकम के केस में इंक्रीज क्रेडिट होता है, डेबिट डिक्रीज होता है। तो जब मैं गुड सेल करूंगा 30,000 पे, तो मेरी सेल्स इनकम इंक्रीज होगी, पहले सेल नहीं था अब सेल आ गया, कितने से सेल हो गया 30,000 का सेल हो गया, तो मैंने 30,000 की इनकम इंक्रीज की, मैंने इनकम के इंक्रीज साइड पे लिखा, मतलब मैंने क्रेडिट पे लिखा, इसलिए हम बोलते हैं सेल्स को क्रेडिट करना है, एंड उसकी वजह से मेरी कैश भी इंक्रीज होगी, कैश के इंक्रीज साइड पे लिखा, डेबिट साइड पे 30,000 से कैश इंक्रीज होगी। सो इसलिए बोलते हैं कैश को डेबिट करो। अरे कैश को डेबिट करो मतलब दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, कैश इंक्रीज कर रहे हो। सेल्स को क्रेडिट करो मतलब सेल्स इंक्रीज कर रहे हो। कैश को डेबिट मतलब इंक्रीज। अब अकाउंट को पढ़ना सीखो, मेरी कैश इंक्रीज हुई 1,30,000 से, मेरी कैश डिक्रीज हो गई 30 से, तो मेरी कैश कितनी बाकी है 1 लाख। कोई भी अकाउंट में जो बैलेंस होता है वो उसका नेट इंक्रीज होता है। लाइक इन दिस एग्जांपल माय कैश बैलेंस इज 1 लाख, मतलब मेरे पास नेट कैश 1 लाख है। इंक्रीज इन द कैश माइनस डिक्रीज इन द कैश इज द नेट कैश। And always remember, increase will be always and always more than decrease. Obviously, increase will be more than decrease. So cash के केस में increase मतलब debit is more than decrease मतलब credit. Debit will be always more than credit मतलब क्या बचेगा, डेबिट बैलेंस, इसलिए कैश में डेबिट बैलेंस होता है। अब कैपिटल देखो, कैपिटल क्रेडिट 1 लाख है, इंक्रीज 1 लाख है, डेबिट 0 है, तो कैपिटल में कितना बाकी है 1 लाख। क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, क्रेडिट बैलेंस है। सैलरी देखो, इंक्रीज हैज टू बी मोर देन डिक्रीज, इट इज यूनिवर्सल, इंक्रीज कैन नॉट बी लेस देन डिक्रीज और डिक्रीज कैन नॉट एक्सीड इंक्रीज। एक तो इक्वल हो सकते हैं बट डिक्रीज इंक्रीज से ज्यादा नहीं हो सकता। सो 10,000, सो सैलरी इंक्रीज हुई 10,000। जब मैं सैलरी के डेबिट साइड पे देख रहा हूं तो आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, अरे इंक्रीज है, सैलरी इंक्रीज हुई 10,000, डिक्रीज 0 है, तो सैलरी में कितना बाकी है 10,000 नेट इंक्रीज। परचेसेस डेबिट मतलब इंक्रीज, क्रेडिट मतलब डिक्रीज। डेबिट हुआ है 20 मतलब इंक्रीज हुआ है 20 से, क्रेडिट कुछ भी नहीं है मतलब नेट इंक्रीज इज 20,000। सेल्स इनकम है, क्रेडिट मतलब इंक्रीज, डेबिट मतलब डिक्रीज। 30 से सेल्स इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब नेट इंक्रीज कितना है 30। सो एवरी अकाउंट टॉक्स अबाउट व्हाट, इंक्रीज और डिक्रीज। एवरी अकाउंट टॉक्स अबाउट इंक्रीज और डिक्रीज, अगर वो समझा तो अकाउंटिंग इजी हो गई। एग्जाम्पल कोई भी उठाता हूं, एक सेकंड, कौन से इसमें जाऊं, ऐसा कोई जहां पे मैं आपको समझा सकता हूं। ओके, यहां पे मैं कुछ चीजें समझा सकता हूं। दिस इज अ बैंक अकाउंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बैंक अकाउंट रीड करना सीखो, रीड, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बैंक अकाउंट इज एन असेट अकाउंट, राइट, मतलब ये इंक्रीज साइड है। असेट के केस में डेबिट इंक्रीज होता है, ये डिक्रीज साइड है। मैं प्रूव करके दिखाता हूं। पहले आपके पास 8,000 बैंक में था, फिर 2,000 और आ गया, और 2,000 आ गया, और 80,000 आ गया,
आपके पास टोटल बैंक बैलेंस होगा 8,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 80,000, आपके पास टोटल 92,000 बैलेंस आ गया। आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, कितना हुआ? 92,000 हुआ। ये पेमेंट्स है, हमने रियलाइजेशन के लिए 2,000 पेड किए, क्रेडिटर्स को 60,000 पेड किए, बिल्स पेएबल वालों को 30,000 पेड किए, ये पेड है, पेड भी 92,000 है। मेरी कैश बैंक बैलेंस 92,000 था, पेमेंट 92,000 है, डेबिट इंक्रीज 92,000 है, डिक्रीज 90,000, इसलिए यहाँ पे बैलेंस नहीं है। तो बैंक इज असेट, डेबिट इज इंक्रीज, क्रेडिट इज डिक्रीज। और देखो यहाँ पे बैंक डेबिट इंक्रीज, क्रेडिट डिक्रीज, आपके पास 12,500 थे और आ गए 1,08,000 और आ गए 10,000, टोटल आपके पास 1,30,500 हो गया। इसमें से आपने रियलाइजेशन के लिए पेमेंट किया 49,250, आपने और रियलाइजेशन के लिए पेमेंट किया 6,250। ये क्या है जाने दो, पेमेंट हुआ है। आपने शुभांगी के कैपिटल को रिटर्न किया 50,000, मनीषा के कैपिटल को रिटर्न किया 25,000। आपके पास जितना पैसा आया उतना पैसा गया। इंक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज, देयरफॉर देयर इज नो बैलेंस। कोई भी अकाउंट उठाओ दुनिया का, कोई भी, इट टॉक्स अबाउट ओनली वन थिंग, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। और मैं यहाँ पे वही समझा रहा हूं आप लोगों से। क्या समझा रहा हूं, ध्यान देना। कोई भी अकाउंट उठाओ, पहले उसका नेचर देखो। इफ इट इज असेट अकाउंट तो डेबिट इज इंक्रीज, क्रेडिट इज डिक्रीज। इफ इट इज एक्सपेंस अकाउंट, सेम एज असेट, डेबिट इज इंक्रीज, क्रेडिट इज डिक्रीज। If it is a liability or income account, credit is increase in that income or liability, debit is decrease. ये फंडा है, try to understand. And if you know, right, एक यूनिवर्सल रूल बोला मैंने, increase is always more than decrease। अब ध्यान देना, इसलिए what do you mean by debit? आपको किसी ने 11th में पूछा होगा what do you mean by debit? डेबिट का आंसर क्या है, ध्यान देना। what do you mean debit? मैं आज समझा रहा हूं आप लोगों को। डेबिट मीन्स इंक्रीज इन असेट और इंक्रीज इन एक्सपेंस। डेबिट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन असेट और इंक्रीज इन एक्सपेंस। और इट इज डिक्रीज इन लाइबिलिटी और डिक्रीज इन इनकम। क्या बोला मैंने, डेबिट। डेबिट का मतलब, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डेबिट अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज डेबिट इन अकाउंट्स, डेबिट का मतलब इंक्रीज इन असेट और एक्सपेंस। अगर जब जब किसी असेट में इंक्रीज होगा, जब जब किसी एक्सपेंस में इंक्रीज होगा, हम उसको डेबिट करेंगे। एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी और इनकम, अगर जिस जिस लाइबिलिटी डिक्रीज होगी हम उसको डेबिट करेंगे। जब जब इनकम डिक्रीज होगी, इसलिए सेल्स रिटर्न डिक्रीज इन इनकम होता है, इसलिए डेबिट करते हो सेल्स रिटर्न, राइट, इनकम। So if someone asks you what do you mean by debit in accounts, पूछते हैं, अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो बहुत लोग पूछते हैं डेबिट का मतलब क्या, बिकॉज दे डोंट नो। हम उनको क्या बोलेंगे, साइड होती है। अरे क्या आप पागल हो, आर यू इलिटरेट, ये आंसर होते हैं। अगर कोई आपको पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट, आप उनको पहले बोलो अकाउंट मतलब कोई भी अकाउंट ले लो दैट टॉक्स अबाउट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन दैट अकाउंट। अगर आप बैंक अकाउंट उठाते हो तो बैंक अकाउंट विल टॉक अबाउट इंक्रीज इन बैंक बैलेंस, डिक्रीज इन बैंक बैलेंस। अगर आप मशीनरी अकाउंट लेते हो दैट विल टॉक अबाउट इंक्रीज इन मशीनरी, डिक्रीज इन मशीनरी। अगर हम क्रेडिटर्स अकाउंट लेते हैं तो दैट विल टॉक अबाउट डेबिट पे डिक्रीज इन क्रेडिटर्स रहेगा, क्रेडिट पे इंक्रीज इन क्रेडिटर्स रहेगा। कैपिटल अकाउंट उठाओ, क्रेडिट मतलब इंक्रीज इन कैपिटल, डेबिट मतलब डिक्रीज इन कैपिटल। एक्सपेंस अकाउंट उठाओ, डेबिट इज इंक्रीज इन एक्सपेंस, क्रेडिट इज डिक्रीज इन एक्सपेंस। इनकम अकाउंट, क्रेडिट इज इंक्रीज, डेबिट इज डिक्रीज। ये आपको बोलना आना चाहिए। एनी अकाउंट शोस चेंजेस इन दैट। कोई भी अकाउंट उठाओ, जाओ आज 11 के बुक उठाओ और देखो और ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू रीड द अकाउंट, इंक्रीज है या डिक्रीज है। सो डेबिट मतलब इंक्रीज इन असेट और डिक्रीज, इंक्रीज इन असेट और एक्सपेंस, डिक्रीज इन लाइबिलिटी और इनकम। एंड व्हाट डू मीन बाय क्रेडिट, एग्जैक्टली उल्टा। क्रेडिट का मतलब क्या, देखो क्रेडिट का मतलब क्या, क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ asset and expenses are decrease। assets and expenses के केस में क्रेडिट मतलब डिक्रीज इन देम, एंड liabilities and income के केस में क्रेडिट मतलब इंक्रीज इन देम।
सो मैं बोलता हूं क्रेडिट इज इंक्रीज इन राइट लाइबिलिटी और इनकम एंड डिक्रीज इन राइट असेट और एक्सपेंस. असेट एंड एक्सपेंस का रूल सेम होता है. एंड एक चीज, ठीक है, अब ध्यान देना, अब हमें बैलेंस ढूंढना है. क्या मैंने बोला? इट इज अ यूनिवर्सल रूल, इंक्रीज इज ऑलवेज मोर देन डिक्रीज ना. सो असेट के केस में इंक्रीज इज ऑलवेज मोर देन असेट एंड एक्सपेंस का देखना. और कोई भी अकाउंट के लिए इंक्रीज इज मोर देन डिक्रीज. तो असेट के केस में देखो, इंक्रीज मतलब डेबिट, इज मोर देन डिक्रीज मतलब क्रेडिट. सो इसलिए असेट्स अकाउंट में हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. असेट एंड एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस होता है. क्यों? ट्राई टू अंडरस्टैंड मैंने क्या बोला. असेट अकाउंट में डेबिट बैलेंस क्यों होता है? बिकॉज कोई भी अकाउंट में कोई भी अकाउंट क्या बोलता है, इंक्रीज इन दैट एंड डिक्रीज इन दैट. एंड हमेशा इंक्रीज इज मोर देन डिक्रीज, हमेशा इंक्रीज इज मोर देन डिक्रीज. तो असेट के केस में इंक्रीज विल, असेट अकाउंट में बैलेंस क्या रहेगा, इंक्रीज इन असेट माइनस डिक्रीज इन असेट. एक्सपेंस में क्या बैलेंस रहेगा, इंक्रीज इन एक्सपेंस माइनस डिक्रीज इन दैट एक्सपेंस. समझ में आ रहा है? एंड इन केस ऑफ असेट्स एंड एक्सपेंस, इंक्रीज मतलब डेबिट इज मोर देन डिक्रीज मतलब क्रेडिट. इसलिए असेट के अकाउंट में डेबिट बैलेंस होता है. उनमें बैलेंस जो है वो नेट इंक्रीज दिखाता है. जो भी कैश में 10 लाख बैलेंस है मतलब 10 लाख नेट इंक्रीज था, मतलब जितना इंक्रीज हुआ माइनस जितना डिक्रीज हुआ, ये सब होने के बाद 10 लाख बाकी है, वो नेट इंक्रीज था उसमें. अगर मैं बोलता हूँ मशीनरी में 5 लाख बैलेंस है मतलब 5 लाख की मशीनरी है, इंक्रीज इन मशीनरी माइनस डिक्रीज इन मशीनरी. ऐसे हो सकता है कि सपोज 20 लाख की मशीनरी परचेस की थी, 15 लाख की मशीनरी सेल हुई है. सो इंक्रीज इन मशीनरी 15 लाख डेबिट 15 लाख, डिक्रीज इन मशीनरी क्रेडिट 15 लाख, सॉरी इंक्रीज इन मशीनरी 20 लाख डेबिट, डिक्रीज इन मशीनरी 15 लाख क्रेडिट, डेबिट 20 लाख क्रेडिट 15 लाख, नेट डेबिट 5 लाख. समझ में आ रहा है? सो एक्सपेंस, सैलरी को क्यों डेबिट बैलेंस दिखता है, एडवर्टाइजमेंट को डेबिट बैलेंस क्यों होता है, रेंट पेड को डेबिट बैलेंस क्यों होता है, इंटरेस्ट पेड को डेबिट बैलेंस क्यों होता है? क्योंकि they show the increase in expenses and increase in expenses are debit and therefore they have debit balance. On similar basis, in case of liabilities and income, your increase is more than decrease. So what is increase is more than decrease? मतलब credit increase मतलब credit is more than decrease मतलब debit. इसलिए they always show debit credit balance. Why capital account shows credit balance? Because capital is a liability. एंड लाइबिलिटी के केस में, कोई भी अकाउंट के केस में इंक्रीज इज मोर देन डिक्रीज. अब ध्यान देना क्या बोल रहा हूं. कैश अकाउंट टाइप, 2-3 एग्जांपल दूंगा तो आप बाकी आपका यू हैव टू यूज योर ब्रेन नाउ. ठीक है, टाइप. बिकॉज बिफोर आई स्टार्ट अकाउंटिंग ये कोई चीजें है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो समझ लेना. एंड मैंने जैसे बोला कम ब्लैंक आ जाओ तो मैं उस पर ब्लैंक स्लेट होनी चाहिए तब मैं लिख सकता हूं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो टाइप असेट अकाउंट बराबर. सो कैश अकाउंट विल टॉक अबाउट इंक्रीज एंड डिक्रीज बराबर. इंक्रीज मतलब डेबिट, डिक्रीज मतलब क्रेडिट. सो नेट क्या बचेगा, नेट इंक्रीज बचेगा मतलब क्या बचेगा, डेबिट. इसलिए कैश अकाउंट एज डेबिट बैलेंस. मशीनरी अकाउंट इज विच अकाउंट, असेट. इट टॉक्स अबाउट इंक्रीज, इट टॉक्स अबाउट डिक्रीज. कोई भी अकाउंट ले लो. सो मशीनरी इंक्रीज मतलब डेबिट, मशीनरी डिक्रीज मतलब क्रेडिट. एंड में क्या बचेगा, इंक्रीज मतलब क्या बचेगा, डेबिट. सैलरी अकाउंट expense, type of account expense. It talks about increase, it talks about decrease. एंड में क्या बचेगा, इंक्रीज बचेगा. इंक्रीज क्या होता है इनके केस में, डेबिट. इसलिए सैलरी हैज डेबिट बैलेंस. एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस अकाउंट. इट टॉक्स अबाउट इंक्रीज, इट टॉक्स अबाउट डिक्रीज. इंक्रीज मतलब डेबिट, डिक्रीज मतलब क्रेडिट. एंड में बचेगा नेट इंक्रीज जो होता है डेबिट. सर कैपिटल अकाउंट इज अ लाइबिलिटी अकाउंट. इट टॉक्स अबाउट राइट. एक सेकंड मैं नीचे लेता हूं, ठीक है. हाँ, capital account, it is a liability account.
So it talks about increase, it talks about decrease. इनके केस में increase क्या होता है? Credit. या अगर आपको ऐसे अकाउंट के फॉर्मेट में देखना है तो मैं ऐसे लिखता हूं, इंक्रीज and it talks about decrease. Increase in capital, capital account क्या बोलेगा? Increase in capital and decrease in capital. Increase in capital is credit, decrease in capital is a debit. And end में क्या बचेगा? Increase बचेगा, मतलब क्या बचेगा? Credit. Increase बचेगा, मतलब क्या बचेगा? Credit. And therefore capital has a credit balance. Bank loan account, हम लोन लेंगे 10 लाख का, 10 लाख से ज्यादा थोड़ी प्रिंसिपल पे करेंगे, जो एक्स्ट्रा पे करेंगे वो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा. सो ज्यादा से ज्यादा कितना पे करोगे? 10 लाख ही पे करोगे ना. इंक्रीज हुआ था 10 लाख से, डिक्रीज होगा मैक्स टू मैक्स 10 लाख ना. यूर डिक्रीज कैन नॉट बी मोर देन इंक्रीज. अब 10 लाख से ज्यादा तो प्रिंसिपल पे नहीं करोगे ना. सो बैंक लोन इज अ लाइबिलिटी अकाउंट, इंक्रीज होगा और रिपेमेंट पे डिक्रीज भी होगा. एंड में क्या बचेगा? नेट इंक्रीज बचेगा, बिकॉज इंक्रीज इज ऑलवेज मोर देन डिक्रीज. मतलब क्या बचेगा? क्रेडिट. सेल्स अकाउंट इनकम, सेल्स अकाउंट इनकम है, I stands for income. It talks about increase in income, it talks about decrease in income. And at the end क्या बचेगा? Increase. मतलब क्या बचेगा? Credit. फिर अगर एग्जांपल मैं सन्ड्री इनकम अकाउंट लेता हूं या रेंट रिसीव्ड अकाउंट, अगेन इट इज इनकम अकाउंट. It talks about increase, it talks about decrease. Increase will remain, that is credit will remain. ये आपका अकाउंट है. एंड में इंक्रीज बचता है. असेट के केस में इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंस के केस में इंक्रीज डेबिट, इसलिए उनमें डेबिट बैलेंस बचेगा. इनकम्स एंड लायबिलिटीज के केस में इंक्रीज होता है क्रेडिट, इसलिए उनमें क्रेडिट बैलेंस बचता है. तो जब भी आगे से अकाउंट देखोगे तो उसको अकाउंट की तरह मत देखो, उसको इंक्रीज डिक्रीज की तरह देखो. मतलब अगर हम अगर हम एसेट और एक्सपेंस अकाउंट देखते हैं तो ये वाली साइड क्या रहेगी? डेबिट वाली साइड इंक्रीज इन देम, एंड क्रेडिट वाली साइड क्या रहेगी? डिक्रीज इन देम. अगर हम लाइबिलिटी या इनकम अकाउंट देखते हैं, क्रेडिट साइड कौन सी साइड रहेगी? इंक्रीज इन देम. एंड डेबिट साइड क्या रहेगी? डिक्रीज इन देम. एग्जैक्टली मिरर इमेज है. सो वही मैं समझा रहा हूं कि आगे से नेवर एवर से कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, एटलीस्ट मेरे सामने तो मत बोलना रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट. मुझे बुरा लगता है, वो करेक्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ रॉन्ग है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. आज कोई भी सॉफ्टवेयर देखो, आज कोई भी किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से जाके बात करो जो अकाउंटिंग करते हैं, दे विल से देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट: एसेट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, इनकम अकाउंट एंड लाइबिलिटी अकाउंट. ऐसे वो आपको बोलेंगे एसेट, लाइबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस. तो ये गलत नहीं है, लेकिन ये जो रूल है, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट. सो मैं आपको वही बोल रहा था कि एट द एंड इंक्रीज बचेगा, इसलिए बैलेंस डिफाइन होते हैं. सो इसे बीच बीच में कभी कभार होता रहेगा, तो जनरली नहीं होता है, बट समटाइम्स सम थिंग्स आर बियॉन्ड माय कंट्रोल. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है. सो ये हमारे रूल्स है. तो क्या जब भी हम असेट अकाउंट देखेंगे, एक्सपेंस अकाउंट देखेंगे, डेबिट मतलब इंक्रीज इन असेट और एक्सपेंस, क्रेडिट मतलब डिक्रीज इन असेट और एक्सपेंस. लाइबिलिटी और इनकम अकाउंट देखेंगे तो क्रेडिट मतलब इंक्रीज इन देम, डेबिट मतलब डिक्रीज इन देम. एंड आगे से अकाउंटिंग ऐसे होगी. सर हमें थोड़ा लिंकिंग करवा के दो. मैं लिंकिंग करूंगा एंड देन आई विल स्टॉप. सर हमें ओल्ड अकाउंट्स एंड न्यू अकाउंट्स में लिंकिंग करवा दो, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जो बच्चे जो ओल्ड के हिसाब से समझते हैं, उनको न्यू के हिसाब से समझने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओल्ड में आप बोलते हो रियल अकाउंट्स, आप फिर बोलते हो पर्सनल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स. दिस इज लिंकिंग. नॉमिनल अकाउंट्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. रियल अकाउंट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस. Debit balance. Personal accounts may show, some personal account may show debit balance, like debtors show debit balance, debtors show debit balance, and some personal accounts may show credit balance.
Like creditors, capital account, bank loan, they are personal accounts. Even bank account is a personal account. Bank has a debit balance, asset. And bank loan, creditors, your bills payable, या आप capital itself are a personal account having a credit balance. बराबर? Nominal accounts, some nominal accounts shows debit balance. They are expenses. Salary account, purchase account, right? ये सब क्या दिखाते हैं? डेबिट बैलेंस दिखाते हैं. बराबर? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, right? Goods lost by fire account, example. And some nominal accounts may show you which balance? Credit balance. Incomes. अब मैं इनको क्या बोलता हूं? मैं इसको बोलता हूं, मेरे पास कौन कौन से अकाउंट है? असेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, इनकम अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट. मैं इसको थोड़ा स्विफ्ट चेंज करके लिखता हूं कन्वीनियंस के लिए. मेरे 4 अकाउंट्स. अब ध्यान देना, लिंकिंग क्या है? रियल अकाउंट्स आर asset accounts. Personal accounts having debit balances are your asset accounts. Debtors. Personal accounts having credit balances are which account? Liabilities. Nominal accounts having debit balances उनको मैं क्या बोलता हूँ? Expense. And nominal accounts having credit balance उनको मैं क्या बोलता हूँ? Incomes. आप जो बोल रहे हो उसको मैं थोड़ा प्यूरिफाई करके बोल रहा हूँ. मैंने क्या बोला? रियल अकाउंट्स को मैं असेट अकाउंट बोलता हूं, एंड ऑल दोस पर्सनल अकाउंट्स व्हिच हैव डेबिट बैलेंसेस आर माय असेट्स. देयरफॉर असेट्स अकाउंट हैज व्हिच बैलेंसेस? डेबिट बैलेंसेस. चाहिए तो आप देखो. बराबर? liabilities are always and always personal because we pay our liability towards a person, maybe natural person, artificial person or representative person. liability एक बंदे के towards होती है, artificial, natural और representative. So liabilities are always and always personal account. जो जिसको आप पर्सनल बोलते थे वो या तो असेट हो सकती है या तो लाइबिलिटी हो सकती है. रियल अकाउंट्स आर ऑलवेज असेट अकाउंट. पर्सनल अकाउंट्स कैन बी असेट्स और कैन बी लाइबिलिटी, डिपेंड्स ऑन देयर बैलेंस. देखो मैं आपको बोलता हूं एग्जांपल, राम अकाउंट. आप बोलोगे पर्सनल अकाउंट है, मैं बोलता हूं वो असेट है या लाइबिलिटी है. आप बोलोगे सर हमें बैलेंस बोलो. अगर वो डेबिट बैलेंस है तो असेट है, क्रेडिट बैलेंस है तो लाइबिलिटी है. समझ में आ रहा है? सो personal account with debit balances are assets, personal accounts with credit balances are liabilities. Nominal accounts with debit balances are expenses, nominal accounts with the credit balances are incomes. मैं जब भी सिखाता हूं मैं इस फॉर्म में सिखाता हूं और आप you will get used to it. You will get used to it. खाली बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर है जिसमें मैं ओल्ड रूल यूज करता हूं, वो भी पर्सनल अकाउंट का, क्योंकि बच्चों को उतनी इमेजिनेशन नहीं रहती इसलिए मैं वो रूल यूज करता हूं. अदरवाइज मैं कहां पे भी ओल्ड रूल्स यूज नहीं करता हूं. मैं हमेशा यही रूल यूज करता हूं, हमेशा. सो जब मैं कैश अकाउंट की बात करता हूं, ध्यान देना, जल्दी समझ में आ जाएगा. मेरे पास ओरिजिनली एग्जांपल, मेरे पास ओरिजिनली 10,000 कैश थी. हम बोलते हैं ओपनिंग में डेबिट बैलेंस था क्योंकि मेरे पास कैश थी, मेरे पास प्लस कैश है ना 10,000. फिर मेरे पास 1 लाख आ गया, इंक्रीज हो गया, मैं डेबिट करूंगा कैश को. दिस इज कैश अकाउंट. आप डेबिट बोल रहे हो, मैं इंक्रीज बोल रहा हूं. मेरे पास और 50,000 आ गए मतलब मैं कैश इंक्रीज कर रहा हूं. आप उसको डेबिट बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं मैं कैश इंक्रीज कर रहा हूं. मैंने किसी को 30,000 दिए, आप बोलते हो कैश को क्रेडिट करो, मैं बोलता हूं कैश को कम करो. कैश को कम करना मतलब क्रेडिट करना. आप उसको क्रेडिट करना बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं कैश को कम करो. आपने किसी को और 40,000 दिए, आप बोलते हो कैश को क्रेडिट करो, मैं बोलता हूं कैश को कम करो. आपको और किसी ने 20,000 दिए, आप बोलते हो कैश आ गई डेबिट करो, मैं बोलता हूं कैश इंक्रीज करो मतलब ही डेबिट करो. अब ओवरऑल इंक्रीज कितना हो गया देखो. ओवरऑल इंक्रीज 1,10,000, 1,60,000, 1,80,000.
ओवरऑल इंक्रीज 1,80,000 है, ओवरऑल डिक्रीज कितना है 70। ओवरऑल डेबिट है 1,80,000, ओवरऑल क्रेडिट है 70, तो नेट इंक्रीज कितना हो गया 1,10,000। जो नेक्स्ट ईयर में फिर हम पॉजिटिव साइड पे लेके आते हैं, डेबिट साइड पे कैश के। सो ये कैश अकाउंट क्या दिखाता है, डेबिट शोज इंक्रीज इन कैश, क्रेडिट शोज डिक्रीज इन कैश। ये कॉमन मैन को जल्दी समझ में आएगा, बट कॉमन मैन को समझ में आया नहीं आना चाहिए, हम डेबिट क्रेडिट यूज कर रहे हैं, बट मेरे लिए कैश डेबिट मतलब इंक्रीज, कैश क्रेडिट मतलब डिक्रीज, तो जल्दी समझ में आएगा। मैं जब बोलूंगा कैश को कम करो, तो यू शुड पोस्ट ऑन डिक्रीज साइड ऑफ द कैश, मतलब क्रेडिट। मैं बोलूंगा कैश को इंक्रीज करो, तो यू शुड पोस्ट ऑन इंक्रीज साइड ऑफ द कैश, मतलब कैश के डेबिट साइड पे। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी आपने 11th में किया होगा। हमारे पास मशीनरी 1 लाख की थी, हमारे पास 1 लाख की मशीनरी थी, असेट थी, पॉजिटिव है मतलब डेबिट है, 1 लाख की है, मैंने और 2 लाख की परचेस की। मैं बोलूंगा मशीनरी इंक्रीज करो, मशीनरी इंक्रीज करो, मशीनरी के डेबिट पे लिखो, अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। अब 3 लाख की मशीनरी हो गई, मैं बोलूंगा कि 50,000 से डिप्रिसिएट करो। मशीनरी डिप्रिसिएट करोगे तो मशीनरी को डिक्रीज करना होता है, तो उसके डिक्रीज साइड पे लिखो, मतलब मशीनरी के क्रेडिट पे लिखो, मतलब मशीनरी को क्रेडिट करो। अब कितना बैलेंस है, इंक्रीज हुआ है कितने से 3 लाख से, डिक्रीज हुआ है 50,000 से, तो नेट इंक्रीज कितना है 2,50,000। डेबिट 3 लाख से, क्रेडिट 50 है, तो नेट इंक्रीज कितना है 2,50,000, जो मैं आगे लेके आऊंगा। सो मशीनरी अकाउंट टॉक्स अबाउट इंक्रीज इन मशीनरी, डिक्रीज इन मशीनरी। कैपिटल भी आपको पता है इसलिए मैं समझाता हूं, ध्यान देना। दिस विल बी माय लास्ट अकाउंट फॉर द डे, ध्यान देना। कैपिटल, कैपिटल इज लाइबिलिटी अकाउंट, मतलब इंक्रीज क्रेडिट साइड रहेगी, डिक्रीज। हमने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख कैपिटल से, तो कैपिटल इंक्रीज होगा 1 लाख से, तो आप बोलते हो कैपिटल को क्रेडिट करो, मैं बोलता हूँ कैपिटल को इंक्रीज करो। हम एक ही बात कर रहे हैं, मैं इंक्रीज डिक्रीज के लैंग्वेज में वो जल्दी समझ में आता है। फिर उसने 2 लाख और कैपिटल दिया, तो उसका कैपिटल इंक्रीज करना है, अब 3 लाख हो गया। उसने 40,000 ड्रॉइंग्स की है, ड्रॉइंग्स की है, आप बोलते हो कैपिटल कम करो, मैंने कैपिटल कम किया, मैंने निगेटिव डिक्रीज साइड पे लिखा, समझ में आ रहा है। उसने गुड्स विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए 30,000 के, आप बोलोगे कैपिटल कम हो गया। एट द एंड, राइट, एट द एंड प्रॉफिट हुआ, सपोज 60,000 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल इंक्रीज करना होता है, तो कैपिटल को इंक्रीज करना है, मतलब कैपिटल के इंक्रीज साइड पे लिखो, क्रेडिट साइड पे लिखो। इसलिए हम बोलते हैं कैपिटल, जब प्रॉफिट होता है कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है, ऐड करते हो। सो दिस इज इंक्रीज इन कैपिटल, दिस इज डिक्रीज इन कैपिटल। इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिट। जब जब कैपिटल डिक्रीज होगा हम उसको डेबिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब जब कैपिटल इंक्रीज होगा हम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, टू कैपिटल, टू कैपिटल, टू कैपिटल, लाइक दैट। नेट इंक्रीज, कितनी नेट इंक्रीज है 3,60,000, नेट डिक्रीज इज 70, देयरफॉर नेट इंक्रीज इज 3,60,000, डिक्रीज इज 70, तो नेट इंक्रीज कितना हो गया 2,90,000। नेट इंक्रीज है क्रेडिट, ये क्रेडिट बैलेंस है, नेक्स्ट टाइम क्रेडिट पे आएगा। So any account is increase in that or decrease in that. तो ये जो मैंने लिखा है, this will help you to pass any journal entry in the world, कोई भी जर्नल एंट्री, कोई भी। बैड डेट्स हो गए, 2 अकाउंट्स होते हैं बैड डेट्स, मतलब एक होते हैं डेटर्स एंड दूसरा होता है बैड डेट्स। डेटर्स एंड दूसरा होता है बैड डेट्स। अकाउंट के टाइप तो पता होनी चाहिए एटलीस्ट। ये एसेट अकाउंट है, ये एक्सपेंस अकाउंट है या लॉस अकाउंट है, एक्सपेंस और लॉसेस, मतलब ये इंक्रीज साइड है, ये डिक्रीज साइड है। एसेट के केस में इंक्रीज डिक्रीज, एक्सपेंस के केस में भी इंक्रीज डिक्रीज। जब बैड डेट्स होते हैं तो बैड डेट्स लॉस इंक्रीज होता है। सपोज 15,000 का बैड डेट्स हो गया, तो मैं बोलूंगा बैड डेट्स लॉस इंक्रीज करो, तो आपने उसको इंक्रीज साइड पे लिखना चाहिए। मतलब हम बोलते हैं बैड डेट्स को डेबिट करो, बैड डेट को डेबिट करो, मतलब बैड डेट्स के डेबिट साइड पे लिखो, मतलब बैड डेट्स इंक्रीज करो। एंड मैं बोलूंगा टू द एक्सटेंट डेटर्स डिक्रीज होंगे, तो हम डेटर्स को डिक्रीज साइड पे लिखेंगे।
इसलिए हम बोलते हैं बैड डेट्स डेबिट होता है एंड डेटर्स अकाउंट क्रेडिट होता है। इसलिए एंट्री आती है बैड डेट्स डेबिट टू डेटर्स क्रेडिट। बैड डेट डेबिट हो गया, एक्सपेंस डेबिट हो गया, मतलब एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। डेटर्स क्रेडिट हो गया, असेट क्रेडिट हो गई, मतलब असेट कम हो गई, डेटर्स कम हो गए। इतना क्लिक होने लगा, धीरे धीरे क्लिक होगा, एक दिन में नहीं हो सकता मे बी, राइट, बट यू कैन पास एनी जर्नल एंट्री। सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट, भले ही आप 11th पास हुए हो, माय सिंसियर इज रिक्वेस्ट इज गो एंड चेक 11th टेक्स्ट बुक। आप बेच भी नहीं सकते अभी बिकॉज वो घर में ही रहेंगे लॉकडाउन की वजह से। गो एंड चेक एंड थिंक इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। इफ नहीं आता यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी आपको कॉल करना है यू कैन कॉल मी, आई विल आंसर यू। ट्राई इट, इंक्रीज डिक्रीज के फॉर्म में देखो, राइट, इस फॉर्म में देखो, आप कोई भी एंट्री पास कर सकते हो, कोई भी। रेंट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड, कैश आ गई, कैश आ गई मतलब असेट इंक्रीज हो गई, मतलब असेट की इंक्रीज साइड कौन सी, डेबिट, इसलिए कैश को डेबिट किया जाएगा। एंड रेंट रिसीव्ड इनकम है, इनकम भी इंक्रीज हो गई ना, तो इनकम की इंक्रीज साइड कौन सी है, क्रेडिट। देखो सामने आपके स्क्रीन पे, असेट इंक्रीज डेबिट, इनकम इंक्रीज क्रेडिट, इसलिए कैश को डेबिट किया जाएगा एंड रेंट रिसीव्ड को क्रेडिट किया जाएगा। समझा या नहीं समझा? इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, दो अकाउंट रहेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। कैश कम हो रही है सर, जब इंटरेस्ट दोगे कैश कम होगी, असेट कम होगी, इसलिए उसको क्रेडिट किया जाएगा। हम उसको डिक्रीज साइड पे लिखते हैं, मतलब क्रेडिट, कैश को क्रेडिट कर दिए। एंड इंटरेस्ट पेड, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट किया जाएगा, तो इसलिए इंटरेस्ट पेड को डेबिट किया जाएगा, कैश को क्रेडिट किया जाएगा। एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड दिस इज अ फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स, जो आपके 11th में होना चाहिए। अगर हुआ है रियली गुड, नहीं हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वी विल डू इट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मैं 12th के सिलेबस में ही आपको इंट्रीज कैसे करने होते हैं, जब जब वो आएगा मैं तब समझाऊंगा, राइट। एंड दिस इज अ वे ऑफ माय टीचिंग, मैं ऐसे ही सिखाता हूँ, राइट। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्क्रैच एंड वी विल बिल्ड द बिल्डिंग, ठीक है। कल, अच्छा, एक अगर कल मैथ्स होने वाला है, मैं एक बार मैम सर और मैम दोनों से बात करता हूँ। एक्चुअली दे वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ओनली। अगर वो कल से स्टार्ट करते तो कल पहले मैथ्स होगा एंड इट विल बी फॉलोड बाय अकाउंट्स, मतलब 3 बजे सपोज मैथ्स होगा, 3 to 4 मैथ्स होगा एंड देयर आफ्टर आई विल बी टेकिंग अकाउंट्स, ठीक है। सो 30 मिनट्स का गैप रहेगा, 30 मिनट्स के गैप के बाद अकाउंट्स रहेगा, ठीक है। सो आफ्टरनून सेशन में हम क्या करेंगे अपना, राइट, 12th रखेंगे। मॉर्निंग में मेरा फाउंडेशन चल रहा है, आफ्टरनून में मैं 12th रख रहा हूँ, ठीक है। सो अगर कल होता है तो आई विल डिस्कस विद बोथ द फैकल्टीज, मैं आपको बोल दूंगा जो भी है, राइट, ग्रुप डाल दूंगा, दोनों के लिए अलग मीटिंग्स रहेंगे। अकाउंट्स की मीटिंग मैंने पहले क्रिएट करके रखी है, ये बाकी लोगों जैसे नहीं कि हर दिन मीटिंग के आईडी भेजना, नहीं, यू विल गेट ईमेल एवरी डे। अगर आपको नेक्स्ट डे मेल नहीं मिलता है तो यू कैन यूज प्रीवियस डे मेल, उससे भी आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी, ये रिकरिंग मीटिंग है टिल द 31st ऑफ मार्च। अगर 31st ऑफ मई, अगर 31st ऑफ मई तक अगर नहीं होता है, एक्सटेंड हो जाता है, तो आई विल एक्सटेंड दैट मीटिंग एज वेल, वेबिनार एज वेल, ठीक है। दूसरी बात, मैथ्स स्टार्ट हो जाएगा तो आई विल क्रिएट ए डिफरेंट वेबिनार फॉर द मैथ्स, उसका रजिस्ट्रेशन अलग से होगा, तो जिन जिन का मैथ्स है उनको उसके लिए रजिस्टर करना होगा। देयर विल बी 2 मीटिंग्स, 2 वेबिनार्स, वन इज ऑफ अकाउंट्स, वन इज ऑफ मैथ्स। एंड जैसे अभी चल रहा है वैसे ही एग्जैक्टली मैथ्स होगा, समझ में आ रहा है? मे बी मैथ्स का दे वोंट बी यूजिंग आईपैड, वो अलग सिस्टम से कर रहे होंगे, बट जैसे ही चल रहा है वैसे ही वो होगा, ठीक है। इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज आस्क मी, अभी पूछ सकते हो। एंड माय सिंसियर रिक्वेस्ट, अभी आप बहुत बच्चे नए हैं जो पहले से तो है, अगर आपके फ्रेंड्स है तो प्लीज इन्फॉर्म देम, नाउ यू नो हाउ एवरीथिंग गोज ऑन। तो अगर आपको ठीक लगता है तो प्लीज इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद द सिलेबस। वैसे भी घर पे कुछ कर नहीं रहे हैं, एंड ऐसे देखा जाए अगर वेट करोगे फेस टू फेस बैचेस के लिए या कॉलेज के लिए तो कभी नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट विल टेक लाइक ए लॉन्ग टाइम, इट्स टाइम टू स्टार्ट। अब कितना टाइम वेस्ट करोगे? तो माय सिंसियर रिक्वेस्ट, राइट, टेल योर फ्रेंड्स, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो, राइट। आई विल बी शेयरिंग दिस लेक्चर विथ यू विद इन
हाफ एन आवर में 6 बजे तक एक लेक्चर शेयर करूंगा. इवन यू कैन शेयर द लिंक ऑफ दिस लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल अंडरस्टैंड द वे वी टीच कैसे चल रहा है, बिकॉज देयर आर मेनी misconceptions in the minds of the students and parents that will help them to understand कि कैसे होगा. इवन आपके भी मन में रह सकता है, लेकिन मैंने बहुत लोगों के साथ लिंक शेयर की थी मेरे फाउंडेशन की, तो दे नो कि कैसे होता है. दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. मैं भी ये आपके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ. दिस इज नॉट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट हो चुका है. दिस इज फाइनल आउटपुट, राइट? सो अगर आपके फ्रेंड्स हैं, आई विल डेफिनेटली आस्क यू, दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, कि आप आपके फ्रेंड्स से बोलो, प्रेफरेबली वाडिया कॉलेज, सेंट मीरा, जिन पे मैं जनरली फोकस करता हूँ, राइट? उनके पास आप जाओ, उनके राइट जाना मतलब ऑब्वियसली घर से बाहर नहीं जाना है, राइट? मेरा मतलब है थ्रू व्हाट्सएप, राइट, थ्रू other platforms you can reach out them and you can suggest them our classes, right? So मैंने अभी स्टार्ट किया है. फ्रॉम टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग विद द राइट बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर. कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ? बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, ठीक है? थैंक यू. और प्लीज सब कोई तो ये जो अपना सॉफ्ट कॉपी है टेक्स्ट बुक की, आज फिर से ग्रुप पे डाल दो. ऑल अकाउंट्स, मैथ्स, दोनों मैथ्स के और अकाउंट्स के, प्लीज उतना मेरे लिए कर देना, ठीक है? मतलब सबके पास वो अवेलेबल रहेगी, जिनके पास अभी नहीं है उनके लिए भी. अच्छा एक सेकंड, देयर इज वन क्वेश्चन, मैं वो क्वेश्चन देखता हूँ क्या है. सर व्हाट इज द फाउंडेशन लेक्चर? अरे पहले तो ये बात समझ लेना, फाउंडेशन वैसे भी मई में स्टार्ट नहीं होने वाला था. फाउंडेशन स्टार्ट होने वाले थे जून में, 15 जून से. सो डोंट थिंक अबाउट द फाउंडेशन राइट नाउ. फाउंडेशन जून 15 को स्टार्ट होगा. अभी हम 12 स्टार्ट करें. एक्चुअली दिस लेक्चर वाज सपोज्ड टू बी स्टार्ट इन ऑन द 13th अप्रैल, बट मुझे बाकी लोगों जैसे नहीं करना था कि वो करना है इसलिए नहीं करना है, करना है तो ठीक करना है. 2 दिन लेट स्टार्ट किया बट अच्छे से स्टार्ट किया, ठीक है? फाउंडेशन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 15 जून एज ऑलरेडी टोल्ड टू यू. अपने पैम्पलेट में 15 जून थी, ठीक है? और आपका फाउंडेशन का एग्जाम नवंबर 2021 में होगा, ठीक है? तो तब स्टार्ट हो जाएगा. अभी जो फाउंडेशन ले रहा हूं दे आर योर सीनियर बैच स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th दिया है. Sir, what the app is to be downloaded? Okay, I will share the link of the app on the group. मैं वो शेयर करूंगा, वो ऐप डाउनलोड कर लेना और ऑर्गेनाइजेशन कोड उस ऐप उस मैसेज में रहेगा, वो डाल दो, राइट? आप एक तो ई लर्निंग ऐप कैम ब्रांच का आपके यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, राइट? एंड बैच, जैसे मैंने बोला, मैं बैच क्रिएशन के लिए जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उनको मैंने रिक्वेस्ट रेज की है, तो वो हो जाएगा. मुझे आपका डेटा देना था इसलिए मैं रुका था. तो 2-3 दिन में वो बैच क्रिएट हो जाएगी. फिलहाल जो भी आज का लेक्चर है आई विल बी शेयरिंग थ्रू यूट्यूब, ठीक है? उसके बाद आपके हर चीज ऐप से थ्रू हो जाएगी. विद इन 2-3 days एवरीथिंग विल बी ऑन ट्रैक. सो वी आर गेटिंग स्टार्टेड विद द लेक्चर्स एंड एवरीथिंग. अच्छा, इसके सिवा किसी का और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है? एंड माय, जैसे मैंने बोला, प्लीज कम्युनिकेट विथ योर फ्रेंड्स. And on this note, I will conclude today's lecture. I think आपको समझ में आएगा कैसे चलेगा, हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है? थैंक यू.